Yeah. Shit. Mother. पता नहीं कहाँ जा रही दुनिया. और ये वो फादर है जिसने ये बोला था जब हमने बोला कि तूने अपनी बेटी के साथ क्यों किया, वो बोला अपनी के साथ ही किया, किसी और के साथ थोड़ी ना किया. Seriously? यस. क्या साइकोलॉजी है. उसको मेडिकल में क्लियर है कि बच्ची की 4 सर्जरीज हुई हैं. बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, वो भी एग्रावेटेड फॉर्म है, बच्चा अंडर 12 है. तो तब भी जज को सोचना पड़ रहा है, दे आर सो इनह्यूमन. वो ऐसे लोगों को स्पेशल कोर्ट में बैठा रखा है कि उनको ये नहीं पता कि हमने बच्चे को कंपनसेशन देनी है, बच्चे की रिहैबिलिटेशन के लिए वो जरूरी है. अगर लड़का अपनी वर्जिनिटी लूज करता है ना, अभी भी इट इज नॉट अ बिग थिंग. वो तो मान की बात मानी जाती है, लेकिन लड़की अगर वर्जन नहीं है तो वो तो अभी भी बुरी चीज है लड़की के लिए, है ना. अगर कोई अमीर है तो पुलिस का रिएक्शन क्या होता है कि इनसे पैसे ले लें, और लड़की वालों को क्या मिलेगा आपको, आपकी लड़की की कल को शादी नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसी चीजें बोलते हैं. Good morning, good afternoon, good evening friends. This is your host Naveen Kumar Verma and welcome to the Alpha People. So आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही सेंसिटिव है and we are going to talk about child sexual abuse. Yes, this is very critical topic and it is happening in our today's society. कभी यहाँ कभी वहाँ कोई ना कोई केस ऐसा आ ही रहा है. सो ये डेफिनेटली अदर केसेस भी हैं, लेकिन पर ये भी एक ऐसा केस है जो कि नॉर्मली हमारी सोसाइटी में दबा दिया जाता है. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस एंड आवर स्पेशल गेस्ट इज सिमरनजीत कौर गिल. शी इज़ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एडवोकेट एंड शी इज़ आल्सो रनिंग ए NGO आल्सो. इनका जो NGO है ऐसे स्पेशल केसेस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है, या स्पेसिफिकली फॉर चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज केसेस. So let's connect with Simranjit ji. सिमरनजीत मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है द अल्फा पीपल में. आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला. थैंक यू वेरी मच. ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ. ਐਂਡ ਆਈ ਮਸਟ ਸੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਇਟ ਹੈਲਪ ਪੀਪਲ, ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ हैं कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ कि ਅਸੀਂ अपने विचार लोगों आगे रख सकिए. थैंक यू मैम. हमारा मेन मकसद भी यही है इस पॉडकास्ट का कि जो आपके पास नॉलेज है, स्किल है, इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम अपने दर्शकों तक पहुंचा सके. बिल्कुल. थैंक यू मैम. So ma'am, let's start with a little bit about yourself. So how your journey towards the LLB law started? So why law? ये मतलब लॉ कदे भी मेरा पैशन नहीं सीगा कि मैं लॉ करना है. तो मैनू आर्मी और यूनिफॉर्म वाली ਜਿਹੜੀ जॉब हैगी ਆ बहुत अट्रैक्ट करदी सी. मैं आर्मी 'ਚ जाना चाहती सीगी. सो मैं NCC ਰੱਖੀ ਉਹਦੇ ਲਈ. NCC ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸਾਲ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵੀ ਲਗਾਏ ਨੇ. ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, RD ਪਰੇਡ ਦੇ ਲਈ ਵੀ. ਬਟ ਮੇਰੇ ਨਾ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ. ਸੋ ਆਈ ਐਮ C ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਲਡਰ NCC ਦਾ. C ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, B ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 2 ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਦੋਨੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ. ਓਕੇ ਵਾਓ. ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ SSB ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ. ਸੋ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਆਫਿਸਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ. ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜੈਗ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜੈਗ ਐਂਟਰੀ ਜੋ ਲਾਇਰਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਲਾਅ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ. ਬਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ. ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸਮਤ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਸੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ. ਤੇ ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਅ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 75% ਗਰਲਸ ਨੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ. ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਡਮੀ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ. ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ. ਤਾਂ ਕੁਛ ਚੇਂਜਿਸ ਲੈ ਕੇ, ਕੁਛ ਹੋਸਟਲ ਦੇ ਚੇਂਜਿਸ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਈ. ਸਾਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੋਪੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲਵੀਰ ਗੋਲਡੀ, ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਵਾਦ ਜਟਾਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ. ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਵੀਰ MLA ਹੈਗੇ ਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੋਪੂ ਨੇ. ਦੀਪੀ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੋਪੂ. ਤਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਈ. ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈਗੀ,
ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਅਟੈਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਇੰਪਲਸਿਵ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਰੂਟਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਰੂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਚਾਈਲਡ ਸੈਕਸ ਅਬਿਊਜ਼। ਓਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਤਾ ਆਈਡੀਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਰੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਸੈਕਸ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗੀ। ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਲੜਦੇ ਫਿਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਲਾਅ ਦੀ ਜਰਨੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਜੈਗ ਬਣਨ ਦੇ ਥਰੂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਲਾਇਰ ਬਣ ਗਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕਰਿਆ, ਪਹੁੰਚੇ ਕਿੱਧਰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡੈਸਟਨੀ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਥੈਂਕਫੁਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਰਾਈਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ LLB ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਤੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਝ NGO ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਜੀ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲਾਅ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਬਣ ਗਈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲਸਿਵ ਨੇਚਰ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਲਡ ਸੈਕਸ ਅਬਿਊਜ਼ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਟਰਾਮੈਟਿਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਿਸਆਰਡਰ ਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਮੈਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਰੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਸੈਕਸ ਅਬਿਊਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਐਂਡ ਉਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਾਈਟ ਫॉर ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦੇयर ਵਾਸ, ਮਤਲਬ ਬਚਪਨ 'ਚ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ NGO ਬਣਾਉਂਗੀ ਐਂਡ ਆਲ, ਬਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ NGO ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਸਲੋਗਨ, ਫਾਈਟ ਫॉर ਰਾਈਟ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਫਾਈਟ ਫॉर ਰਾਈਟ। ਫਾਈਟ ਫॉर ਰਾਈਟ ਮੀਨਸ fight for what is right, not only rights, exactly। so ਇਹਦੇ ਦੋ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋ ਗਏ, ਜੋ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜੋ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜੋ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋ fight for your duty as well। ਤਾਂ ਉਹ ਸਲੋਗਨ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਦੇ ਆ ਵਿਕਟਮਸ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਫਾਈਟ ਫॉर ਰਾਈਟ ਦੀ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਨਹਰਡ ਵਿਕਟਮਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਸੋ ਅਨਹਰਡ ਵਿਕਟਮਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਵਿਕਟਮ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਅਰ ਕਲਾਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਮੇਲ ਹੋਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ NGO ਦਾ ਪਰਪਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਾ, ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਨਹਰਡ ਵਿਕਟਮਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਉੱਥੋਂ ਹੋਈ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ, ਜੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਚਾਈਲਡ ਸੈਕਸ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਸੈਕਸ ਅਬਿਊਜ਼, ਚਾਈਲਡ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਔਰ ਚਾਈਲਡ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਅਬਿਊਜ਼। ਅਸੀਂ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਬੈਗਿੰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸਪੋਰਟ ਟੂ ਦੈਮ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਚਾਈਲਡ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਸੈਕਸ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ, ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਐਨੀ ਸੌਰਟ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਐਂਡ ਇਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਨਾਰਾ ਆ ਕਿ ਜਨ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼, ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੇਗੀ, ਔਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸੂਬਾ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹਜੇ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਮਾਰਤ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣੂਗੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਓਕੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਗ੍ਰੇਟ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਮਤਲਬ NGO ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ
ਉਦਾਂ ਸਮਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਐਂਡ ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ NGO ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਲ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੀ। ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਮੈਟਰ ਵੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰਵਿਸ ਮੈਟਰ ਐਂਡ ਆਲ ਅਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਆਲ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀਦਾ, ਬਟ ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਨਾਟ ਆਫ NGO। सो मैम आपने अपना करियर स्टार्ट कब किया था? सो एज एडवोकेट एज ए एडवोकेट वैसे मैं 2012 की पास आउट हूँ। ओके। एंड 12 से 15 तक थोड़ा बहुत करते थे, बिकॉज आई वॉज मोर एक्टिव इन स्टूडेंट पॉलिटिक्स। 2014 में खुद मेरे पोस्टर भी लगे थे एंड मतलब वहाँ पे फीमेल लीडरशिप कम होती थी। तो हाँ, एज आई टोल्ड कि मेरा टारगेट था कि विमेन को भी वो रिप्रेजेंटेशन मिले कि विमेन लीड करें, क्योंकि 75% गर्ल्स हैं, तो उत्थे फीमेल रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कुड़ियां दी आवाज, कुड़ियां दी प्रॉब्लम्स एक कुड़ी सुन सकती है, उत्थे ज़्यादा हैगियां ने। सो NSUI उदों तक असीं सोपो छड्ड के सारे जने NSUI ज्वाइन कर गए सीगे, कांग्रेस दा जिहड़ा विंग हैगा आ। ਤੇ ਆਈ ਵਾਸ ਸੈਕਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਡਿਸਾਈਡ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੂੰਗੀ ਜੇ ਵਿਮਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੀਡ। ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਫਿਰ दैनिक भास्कर ने टाइटल भी दिता सीगा, फर्स्ट पोस्टर गर्ल बनी सिमरनजीत कौर गिल। एंड ईवन मैंने हुण भी कई टाइटल याद आ, बिकॉज वो तुसी बनाए हुंदे आ ना, तुहानूं याद रहिंदे आ। एंड इंडियन एक्सप्रैस ने टाइटल दिता सी लीडर्स फ्रॉम चीयर लीडर। सो उदों तक ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਆ। ਦੈਨ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਕਦੇ 43, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੂਨੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੈਨ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ HS ਪੰਨੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। 19 ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਨੈਕਟਡ ਆ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ 19 ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਮੀਨਵਾਈਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ NGO ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਗਈ, ਬਟ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਮੂਵ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇ ਬੈਕ ਇਨ? ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਵਾਪਸ। ਓਕੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਵਾਸ ਫਰੀडम फाइटर, ਮਾਈ ਡੈਡ ਡਾਈਡ ਇਨ ਪੁਲਿਸ ਇਨਕਾਊਂਟਰ, ਹੀ ਵਾਸ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ। ਯੈਸ। ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਮੂਵ ਹੋਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਵਾਸ ਓਨਲੀ 6 ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫੇਕ ਕੇਸਿਸ ਐਂਡ ਆਲ ਸਫਰ ਕੀਤੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਹੀ ਲੈਫਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸੇਵ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਮੂਵ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ 2015 ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਲਵ ਮਾਈ ਇੰਡੀਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਇੱਥੇ ਆ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਕ ਇੰਪਾਵਰਡ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਕਲਾਸ ਦੀ ਵੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਅਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ। ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਆਲਦੋ ਲਾਅ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੋ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਐਂਡ ਆਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਰੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਸੈਕਸ ਅਬਿਊਜ਼, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਸੀ। ਸੋ ਆਈ ਮਤਲਬ ਲੈਫਟ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਬਸ ਉਦੋਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਮੈਮ ਲੈਟਸ ਕਮ ਟੂ ਯੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਜੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼।
eradication of child abuse. So let us explain something about कि what exactly comes under Child Abuse Act. इसमें क्या क्या होता है, चाइल्ड क्या अब्यूज का किसको बोल रहे हैं? चाइल्ड अब्यूज इज नॉट कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं है, इसके Okay. बहुत सारे एक्ट है जो चाइल्ड अब्यूज की एरेडिकेशन की बात करते हैं, जैसे इमोरल ट्रैफिकिंग का है और सेक्सुअल अब्यूज का पॉक्सो है, चाइल्ड मैरिज रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज है और चाइल्ड लेबर का है। तो बहुत सारे रूल्स एंड एक्ट्स है, दोज प्रोटेक्ट चाइल्ड राइट्स। चाइल्ड राइट्स। तो इन सब में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये कमीशंस जो बने हुए हैं, ओके, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं कमीशन का, वो स्टैट्यूटरी लॉ है कि आपके स्टेट में और एनसीपीसीआर जो नेशनल लेवल का है, तो वो कमीशंस कैसे बनेंगे। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट वो सबसे पहले नंबर पे इम्पोर्टेंट है। दैट इज सॉर्ट ऑफ मदर ऑफ ऑल लॉज, बिकॉज सारे लॉ की मॉनिटरिंग बॉडी जो है वो चाइल्ड कमीशन है। चाइल्ड कमीशन है। तो चाइल्ड कमीशन कहाँ से बनता है, अगर आप, क्योंकि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट चाइल्ड राइट्स देन यू मस्ट नो अबाउट दिस कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड कमीशन। तो चाइल्ड कमीशन कहाँ से आता है, हम लोग यूएनओ का पार्ट है, राइट। तो यूएनओ की सबसे पहले एक, आप सबको भी पता है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आई, राइट। तो उसमें कुछ लॉज दिए हुए थे, उसमें चाइल्ड लॉज भी थे, उसमें सिविल पॉलिटिकल राइट्स भी। तो फिर उन लोगों को लॉज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ताकि वो जो स्टेट्स हैं जो यूएनओ की पार्टी हैं, स्टेट्स जो मेंबर्स हैं यूएनओ के, तो वो अपने स्टेट्स में ये इंश्योर करें कि वो सिविल पॉलिटिकल राइट प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो इकोनॉमिक राइट प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो कल्चरल राइट प्रोटेक्ट कर रहे हैं और वो चाइल्ड राइट और वुमेन राइट प्रोटेक्ट कर रहे हैं। Okay. तो उसके लिए डिफरेंट कन्वेंशन और कॉवेनेंट है, जो इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो अलग अलग बनाए गए, जैसे कि सिविल राइट्स के लिए है इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल पॉलिटिकल राइट, ऐसी है एक कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स है, ओके, ठीक है। यूएनओ की कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स है, जिसको इंडिया ने रेटिफाई किया हुआ है, ओके। और उसकी रेटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इंडिया इज बाउंड टू प्रोटेक्ट द चाइल्ड राइट्स, राइट, अकॉर्डिंग टू दैट। और वो बोलता है कि आप अपने देश में एक कमीशन बनाओगे और अपनी जितनी भी आपकी स्टेट्स हैं, लोकल बॉडीज हैं, वहां पे भी कमीशन की बनेंगे, ठीक है। और इंडिया ने देन ये एक्ट लाया, इंडिया कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट, ओके, जिसके अकॉर्डिंग चाइल्ड कमीशन बनाया जाता है। नेशनल लेवल पे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, जिसको हम एनसीपीसीआर बोलते हैं, जिसके पास पूरे इंडिया का डाटा रहता है कि कितने ऑफेंस हुए, कितना बच्चा, हर चीज, ठीक है। और स्टेट के है, हमारी स्टेट का है पंजाब स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जिसकी मैं मेंबर भी रह चुकी हूँ, ओके, ठीक है। तो उसके 7 मेंबर्स होते हैं, तो अलग अलग फील्ड के होंगे, एजुकेशन के होंगे, हेल्थ के होंगे। तो ये एक चीज है, तो उसकी फुल ड्यूटी क्या है कि टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, जो भी 18 से छोटा है, ओके, ठीक है। तो वो किस चीज से प्रोटेक्ट करेंगे, एनी सॉर्ट ऑफ चाइल्ड अब्यूज। और चाइल्ड अब्यूज बहुत टाइप के होते हैं, चाइल्ड सेक्स अब्यूज सबसे हीनियस है, फिर जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होगी चाइल्ड की, चाइल्ड लेबर में आ जाती है, ठीक है। और वो उसमें फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन भी आ जाती है, फिजिकल अब्यूज हो गया, मेंटल अब्यूज हो गया, नेग्लेक्ट कर देना बच्चे को। बच्चे का राइट है कि उसके पेरेंट्स उसकी केयर करें, पेरेंट्स उसकी केयर नहीं करते, वो नेग्लेक्ट करते हैं, दैट इज ऑल्सो अ चाइल्ड अब्यूज। एंड मेंटली बच्चे को प्रेशराइज किया जा रहा है कि तू इतने नंबर क्यों नहीं लेके आया, और उसको उसके कलर के कारण, एनी रीजन के कारण उसको बुली किया जाता है, दैट इज ऑल्सो अ चाइल्ड अब्यूज, ओके। वो मेंटल अब्यूज आ गया किसी भी टाइप से, राइट, राइट। बच्चे को बुली करना, बच्चे को पीटना, दैट इज फिजिकल अब्यूज। एंड हीनियस है चाइल्ड सेक्स अब्यूज, जैसे बड़ों का रेप होता है वैसे ही छोटे बच्चों का सेक्स अब्यूज होता है, उनको सेक्सुअली असॉल्ट करना, उनको सेक्सुअली हरास करना, तो वो सारी चीजें सेक्सुअल अब्यूज में आ जाती है, राइट। तो इन सब चीजों से प्रोटेक्ट किसने करना है, चाइल्ड कमीशन ने। और इसमें राइट टू एजुकेशन का हिस्सा भी आ जाता है। राइट टू एजुकेशन के लिए जो एक्ट है वो सारे इन सब की मॉनिटरिंग किसके पास है, चाइल्ड कमीशन के पास। तो अब ये सारी टाइप के चाइल्ड अब्यूज बेसिकली कितने टाइप का हो गया, अगर हम देखें, फिजिकल अब्यूज, मेंटल अब्यूज, ये इकोनॉमिक अब्यूज हो गया,
और सोशल अब्यूज हो गया, Right. उसको निग्लेक्ट कर देना हो गया, तो चाइल्ड लेबर हो गया, सोशल अब्यूज हो गया, जैसे सोशल उसकी चाइल्ड मैरिज कर देना, तो वो अभी कैपेबल नहीं है और लॉ भी नहीं कहता कि 18 साल से आप, लेकिन हमारे कुछ लॉज में अभी भी कमियां हैं। फिर चाइल्ड ट्रैफिकिंग आ गई, ओके, बच्चों को बेचना, बच्चों को आप देखो कि लोग उठा के ले जाते हैं, आपने स्लम डॉग में देखा होगा। Yes, right, फिर right. उनसे आप बैगिंग करवाते हैं, ये सारी चीजें आ जाती हैं। चाइल्ड ट्रैफिकिंग, एक जगह से बच्चों को उठा के ले गए, दूसरी जगह पे बेच दिया जाके, तो ये ट्रैफिकिंग आ जाती है बच्चों की। तो बहुत सी, इट इज अ वेरी वाइड कंसेप्ट चाइल्ड अब्यूज का। तो उसमें सबसे हीनियस, जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने पकड़ा हुआ है चाइल्ड सेक्स अब्यूज। ओके, तो उसमें क्या था, चाइल्ड सेक्स असॉल्ट हो गया। असॉल्ट में जो भी पेनिट्रेटिव ऑफेंस होते हैं, जैसे रेप होता है, जिसमें पेनिट्रेट करना बच्चे के प्राइवेट पार्ट में, बच्चे के माउथ में, तो किसी ऑब्जेक्ट और अपना प्राइवेट पार्ट इंसर्ट करना, दैट इज पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। फिर होता है बच्चे के प्राइवेट पार्ट को टच करना, जब बच्चे से अपने प्राइवेट पार्ट को टच कराना, दैट इज सेक्सुअल हरासमेंट और असॉल्ट, नॉर्मल टाइप का, पेनिट्रेटिव नहीं है, नॉर्मल असॉल्ट हो गया। फिर बच्चे को आपने ऑब्सीन मटेरियल के लिए यूज करना, सच एज पोर्नोग्राफी, ओके, जहां बच्चे को पोर्नोग्राफी का कंटेंट दिखाना, ठीक है, और फिर उसको स्टोर करना कमर्शियल पर्पस के लिए। तो ये सारा कुछ क्या आ गया, ये सारा कुछ आ गया पोर्नोग्राफी में, और ये सारी चीजों को डील करता है पॉक्सो एक्ट, ओके, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जितने टाइप के भी है, जो मैंने बताया कि आपको सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हो गया, इसकी एग्रेवेटेड फॉर्म होगी, सेक्सुअल हैरासमेंट होगी, देन आपका पोर्नोग्राफी हो गया। और इसमें सिर्फ ये नहीं बताया गया कि कौन कौन से ऑफेंस है पॉक्सो में। ओके, पॉक्सो में प्रोसीजर भी बताया गया। ओके, पॉक्सो में बताया गया है कि हाउ टू रिपोर्ट द केस, और रिपोर्टिंग, नॉन रिपोर्टिंग इज ऑल्सो ऑफेंस। मान लो कि आपने सड़क पे देखा कि किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है, आपको पता चल गया, लेकिन आपने किसी को बताया नहीं, ओके, दैट इज अमाउंट टू नॉन रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंस, कि आपको पता चल गया लेकिन आपने नहीं बताया। तो वो बच्चे ने जाके किसी टीचर को बताया कि मेरे साथ दूसरे टीचर ने ऐसे किया, लेकिन टीचर ने उसको चुप करा दिया, तो वो भी नॉन रिपोर्टिंग होगी। बच्चे ने माँ बाप को बताया लेकिन माँ बाप ने रिपोर्टिंग नहीं की, वो भी नॉन रिपोर्टिंग होगी। तो वो सारी चीजें, नॉन रिपोर्टिंग इज ऑल्सो ऑफेंस। यही नहीं कि बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज होना ही ऑफेंस है, नहीं, उसकी नॉन रिपोर्टिंग इज ऑल्सो ऑफेंस। और बच्चे की जो इंसिडेंट है उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना, ओके, दैट इज ऑल्सो ऑफेंस। तो दैट इज व्हाई जो मीडिया वाले हैं ये नहीं दिखा सकते, मीडिया समटाइम एफआईआर दिखा देता, वो नहीं दिखा सकते। बिल्कुल। एनीवे बच्चे की आइडेंटिटी डिस्क्लोज होती है, जैसे कोलकाता वाले केस में हुआ कि उन्होंने जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप अभी रिमूव करो सोशल मीडिया से उसकी आइडेंटिटी, बिकॉज दैट्स नॉट अलाउड। निर्भया को निर्भया नाम क्यों दिया गया, इसी कारण दिया गया, समझे? वो नो वन हैज राइट टू डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम जब तक वो उसके ही बेनिफिट के लिए जरूरी ना हो। तो ये कलकत्ता वाले केस में क्या कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं? कलकत्ता वाले केस में तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कमेटी बैठाई है, वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा। लेकिन उसमें इनिशियल में प्रॉब्लम कर दी गई ना। उसमें क्या हुआ कि देखो कि केस क्या बन रहा है, पहले आप रेप को साइड पे रखो, ठीक है। देखने में आप देखोगे कि वो मर्डर लग रहा है, लेकिन मर्डर को सुसाइड बनाया गया, ठीक है। कोई इंसान खुद को इतनी चोटें कैसे पहुंचा सकता है? ऑब्वियस है। इवन ईदर दैट इज नॉर्मल सुसाइड और अबेटमेंट टू सुसाइड। तो वो तो क्लियर कट केस था कि उसमें मर्डर तो लिखा जाता, तो फिर भी एफआईआर जो रजिस्टर्ड हुई वो किसकी हुई? सुसाइड की हुई। तो वो पहले नंबर पे ही प्रशासन पे डाउट डालता है। तो फिर 3 घंटे तक पेरेंट को मिलने नहीं दिया, क्राइम सीन को हॉच-पॉच कर दिया गया। और 3 घंटे मोर देन अनफ होते हैं टेम्परिंग ऑफ किसी भी एविडेंस को टेम्पर करना और मैनिपुलेट करना। तो 3 घंटे तक उन्होंने पेरेंट्स को नहीं आने दिया, उनको इन्फॉर्म भी गलत किया वहां पे, और फिर काम भी शुरू कर दिया। तो वहां पे टेम्परिंग ऑफ जो एविडेंस है वो आराम से हुआ है। और फिर सबसे ज्यादा शक जाता है कि व्हेन हेड ऑफ द स्टेट
जिसने ऑर्डर करना है, जिसने सुओ मोटो लेना है, जिसने उस पे एक्शन करना है, वो प्रोटेस्ट कर रही है। अभी उन्होंने लॉ भी पास किया। जब ऑलरेडी वी हैव अ स्ट्रॉन्ग लॉ, तो आप एंटी रेप लॉ पास करके भी क्या करोगे? ऑब्वियस है। वी हैव ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग लॉ, थिंग इज कि हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट। हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन की है, यहाँ पे लॉस की तो प्रॉब्लम ही नहीं है। सो काइंडली प्रोवाइड दी लॉज जिसमें प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो। प्रोसेस सेट करना है। यस, आप अपने पुलिस को प्रॉपर ट्रेनिंग दो, आप अपने ऑफिसर्स, इवन अपने जुडिशियल ऑफिसर्स हैं जो कोर्ट के जजेस हैं, उनको भी प्रॉपर जो है उसकी आप इम्प्लीमेंटेशन के लिए और लॉ को प्रॉपर जो है जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए उसकी ट्रेनिंग दो। दैट इज मतलब दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। ऑब्वियस है। अभी थोड़ा सा ध्यान हटा के मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन से ही बात करती हूँ। ये जो अभी नया लॉ भी है, BNSS में है, जो मतलब प्रोसीजरल लॉ है हमारा, भारतीय न्याय संहिता नहीं, भारतीय वो जो CRPC की जगह पे आया है, BNSS, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन, कोर्ट का प्रोसीजर, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, पुलिस अरेस्ट एंड ऑल वो चलता है। ओके। तो उसमें एक प्रोविजन है कि विक्टिम कंपनसेशन की। ओके। जो भी रेप विक्टिम है, एक तो उसमें मेडिकल की है कि जब भी कहीं एसिड अटैक, रेप, जहाँ चाइल्ड सेक्स अब्यूज का केस आता है, तो इमीडिएट मेडिकल हेल्प विक्टिम को प्रोवाइड की जाएगी। कहाँ पे? एनी हॉस्पिटल। ओके। लेकिन हमारे कहाँ लेके जाते हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल ओनली। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट उसका खर्चा बेयर करेगी। और कोई भी हॉस्पिटल को लाइसेंस जो मिलता है उसमें ये है कि आपके पास अगर कोई एसिड सर्वाइवर, जो एसिड विक्टिम आता है, रेप विक्टिम आता है, चाइल्ड अब्यूज विक्टिम आता है, देन यू आर ड्यूटी बाउंड टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंट टू दैट विक्टिम। ओके। तो यानी कि इन सब केसेस के अंदर कोई भी अगर इवन पेरेंट्स को भी पता लगता है तो डायरेक्टली किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी नियर बाय हॉस्पिटल है, वो प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, कोई भी है, वहां पे जाओ और उसका ट्रीटमेंट कराओ। ओके। तो उनको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। They cannot object. नो। ओके। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट करना पड़ेगा ये भी। तो फिर ये हमेशा लोगों को नॉलेज नहीं है, लोगों को नॉलेज नहीं है, ये प्रॉब्लम है। और वही चीज है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है। सब कहाँ भागते हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक होता है और वो बहुत दूर होता है। तो प्राइवेट तो नियर बाय बहुत होते हैं। तो पीपल डोंट हैव दैट नॉलेज कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जा सकते हो। और प्राइवेट हॉस्पिटल में जब वो केस आएगा तो ये उस हॉस्पिटल की ड्यूटी है टू इन्फॉर्म दी पुलिस कि हमारे यहाँ पे ये केस आया है, मान लो एसिड का आया, कि ये एसिड का केस आया, कैंडली रजिस्टर्ड दी FIR। और पुलिस इज ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर दैट FIR। ओके। और वो ये प्रोसीजरल लैप्स है जो हमारे देश में होता है और इसको बिल्कुल ही फॉलो नहीं किया जाता। तो वो पेरेंट्स से पैसा भी नहीं मांग सकते? नहीं मांग सकते, बिल्कुल नहीं मांग सकते। उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ओके। दैट इज पता ही नहीं है लोगों को। ये तो ये हमारे लॉ में दे रखा है प्रॉपर। और उसके आई थिंक अभी वाले में 496 है मे बी। और क्योंकि अभी नया आया है ना, तो पूरी तरह ये सेक्शंस याद नहीं रहते, बट अप्रोक्सीमेटली 490 मेडिकल एड वाला निकल जाएगा तो वो निकल जाता है। तो ये उनकी ड्यूटी है। उसके अलावा विक्टिम कंपनसेशन स्कीम है। उसमें क्या है? विक्टिम कंपनसेशन स्कीम ये बोलती है कि कोई भी ऐसा विक्टिम है, वैसे तो कोई भी विक्टिम है, जैसे मोटर व्हीकल और वो चीजें भी हैं, उसमें भी कंपनसेशन मिलती है। तो ये जो है, इसमें सरकार फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ विक्टिम उनको जो है कंपनसेशन देगी। ओके। जैसे पॉक्सो में होता है कि अभी कोई केस हुआ बच्चों का, तो प्रीलिमिनरी पहले जो है उसकी एक एप्लीकेशन लगेगी। वो DLSA की ड्यूटी होती है, डिस्ट्रिक्ट लीगल एड अथॉरिटी। वो भी ड्यूटी नहीं करते प्रॉपर अपनी। तो DLSA की ड्यूटी है, पहले नंबर पे है कि उसमें है कि कोई विक्टिम आ गया आपके पास, कोई केस आ गया, तो पेरेंट्स अगर अपना वकील करना चाहते हैं तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको वकील प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो पंजाब में तो कहीं भी होता है कि नहीं मिलते, तो हमारी टीम है, वी प्रोवाइड दैट हेल्प। तो फिर उसके बाद DLSA की तरफ से वहां पे एक एप्लीकेशन लगती है इन द स्पेशल कोर्ट फॉर द कंपनसेशन, जो प्रीलिमिनरी मेडिकल एंड ऑल उसके लिए बच्चे के लिए जरूरी होती है। उसके बाद केस कंक्लूड होता है। जब
केस कंक्लूड होने के बाद फिर जो है उस बच्चे को कंपनसेशन मिलती है। ओके। और उसमें एक और प्रोविजन है। समटाइम क्या होता है कि विक्टिम तो है लेकिन अक्यूज फरार हो गया, मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ पे है। तो उसमें एक प्रोविजन है, स्पेसिफिकली मेंशन है उसका, आई थिंक 4 क्लॉज है, 4 नंबर पे उसके क्लॉज 4 में है। उसके क्लॉज 4 ये बोलता है कि इफ विक्टिम इज आइडेंटिफाइड, मींस विक्टिम का पता चल गया, बट द अक्यूज इज ईदर अनट्रेस्ड और अनआइडेंटिफाइड। ओके। विक्टिम की मेडिकल रिपोर्ट बता रही है कि विक्टिम आइडेंटिफाई हो गया, भाई इसके साथ गलत हुआ है, ठीक है। देन उनको फुल एंड फाइनल कंपनसेशन दी जाएगी, ट्रायल कंक्लूड हो या नहीं हो। कौन देगा ये? कोर्ट देगी। कोर्ट देगी। डीएलएसए, स्टेट लीगल एड अथॉरिटी को वो एप्लीकेशन लिख के देंगे, उनकी ड्यूटी है ये देना बच्चे को। बच्चे की रिहैबिलिटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग, ऑब्वियस है, एनीथिंग, राइट। तो रिस्टोरेटिव जस्टिस तो तभी होगी आप बच्चे को वो कंपनसेशन प्रोवाइड करके, ताकि उसकी जो लाइफ है उसको आप सेटल्ड करोगे। ठीक। तो वहां पे भी क्या होता है कि हमारे अभी हम एक बच्ची है उसके केस के लिए बड़ा मतलब भाग दौड़ कर रहे हैं, उसके लिए हम वी आर प्लानिंग टू फाइल PAL एज वेल, बिकॉज कई बार पेरेंट्स को नहीं पता होगा, कई बार DLSA को नहीं पता होता, और जज के पास एप्लीकेशन जाती है और जज उसको रिजेक्ट कर देते हैं ये बोल के कि ट्रायल कंक्लूड नहीं हुआ। अभी वाले केस में तो ये हुआ कि जज ने ये बोल दिया कि कल को ये वेरीफाई हो गया कि वो बंदे ने तो किया ही नहीं है कुछ, तो फिर हम बच्चे से कंपनसेशन वापस लेंगे। तो जबकि उसको मेडिकल में क्लियर है कि बच्ची की 4 सर्जरीज हुई हैं, बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, वो भी एग्रावेटेड फॉर्म है, बच्चा अंडर 12 है, तो तब भी जज को सोचना पड़ रहा है, दे आर सो इनह्यूमन। वो ऐसे लोगों को स्पेशल कोर्ट में बैठा रखा है कि उनको ये नहीं पता कि हमने बच्चे को कंपनसेशन देनी है, बच्चे की रिहैबिलिटेशन के लिए वो जरूरी है। तो उसे वापस क्यों करना, वो तो देगा ना कोर्ट। हाँ, वही बोल रही हूँ कि कोर्ट ने नहीं दिया, कोर्ट को लॉ का ही नहीं पता, वो लॉ को फॉलो ही नहीं कर रहे। So how difficult is to understand this? तो उसके लिए तो फिर हमें आगे फिर ये इसीलिए तो NGO है ना, तो अभी हम उसके लिए लीगल बैटल फाइट करेंगे। वी आर प्लानिंग टू फाइल PAL फॉर दैट। एंड अभी मैंने चाइल्ड कमीशन से भी उस बच्चे के लिए बात कर रखी है, तो चाइल्ड कमीशन को हम एप्लीकेशन देंगे, वो आगे स्टेट लीगल एड अथॉरिटी उसको देंगे, तो वो आगे बच्चे की कंपनसेशन के लिए तो लड़ना पड़ेगा। हमें क्या पता वो अक्यूज कहाँ है, क्या पता वो कहाँ पे जा रहा है, और पुलिस ने उसको अरेस्ट ही नहीं किया जब तो ट्रेस्ड है। एक क्वेश्चन है अभी माइंड में आया मेरे कि जो डिफरेंट टाइप के केसेस होते हैं उसके लिए डिफरेंट टाइप के जजेस ही होंगे, एक भैया किसी को कुछ भी साइन होता है? नहीं, मोस्टली स्पेशल कोर्ट्स होती हैं, जैसे SC/ST हो गया उसकी भी स्पेशल कोर्ट होती है, फैमिली के मैट्रिमोनियल केसेस है उसके लिए स्पेशल कोर्ट होती है, चाहे वो सिविल नेचर का हो या फिर क्रिमिनल नेचर का, उसके लिए स्पेशल कोर्ट हो गई। और फिर आपका ये हो गया जो पॉक्सो हो गया, और उसके लिए स्पेशल कोर्ट है, NDPS के अकॉर्डिंग भी स्पेशल कोर्ट है। सो जिस एक्ट में स्पेशल कोर्ट की प्रोविजन है तो वहां पे स्पेशल कोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। वो बेसिकली क्या होता है, कोई भी जो एडिशनल सेशन जज और सेशन जज होते हैं उनको डेजिग्नेशन दे दी जाती है कि ये स्पेशल कोर्ट है। तो वो जो स्पेशल कोर्ट होते हैं उनके पास वो स्पेशल टाइप के केसेस ही आ रहे होंगे, 5-10 उनके पास वही आएंगे। तो जैसे जो पॉक्सो की स्पेशल कोर्ट है उसके पास अदर रेप केसेस भी होंगे, तब वो नॉर्मल उसकी रेप की स्पेशल केस, और उसके पास पॉक्सो के केसेस। तो इसका मतलब क्या है कि उसके पास थ्रू आउट द लाइफ अगले 5 साल के अंदर इतने केसेस आ चुके होंगे सेम एक रोज ही वो पता नहीं कितने ऐसे केसों को डील करते हैं। मतलब ये चीज उनकी बारीकी उनको पता होती है कि ये क्या चल रहा है, इसमें ऐसा होता है, कई बार पता होती है, कई बार नहीं पता होती। तो उसके लिए अभी भी हमारे कमी है कि वी नीड टू प्रोवाइड देम प्रॉपर ट्रेनिंग। समटाइम ये ट्रेनिंग नहीं होती, और समटाइम हमारा जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो भी स्पेशल होना चाहिए, वो उतना नहीं होता। तो एज पर लॉ तो जो पुलिस ऑफिसर है वो भी स्पेशल होना चाहिए। जैसे चिल्ड्रन के केसेस के लिए तो पंजाब में उसको बोलते बाल मित्र थाना, जैसे विमेन सेल है, विमेन सेल की तरह। हाँ। तो चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन वो ही नहीं है। और वो तो स्पेशल पुलिस ऑफिसर होना चाहिए जो चाइल्ड पुलिस ऑफिसर हो, वो भी नहीं है। स्पेशल जुवेनाइल यूनिट होती है जो चिल्ड्रन होते हैं जो इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ होते हैं। हम चाइल्ड डेलिक्वेंसी वाले जो चिल्ड्रन होते हैं उनको क्रिमिनल नहीं बोलते, वो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ बोलते हैं। तो इस टाइप के केसेस में प्रोसेस मतलब लीगली क्या प्रोसेस फॉलो होना चाहिए जब कोई इंसिडेंट हुआ? लीगली प्रोसीजर तो वो है ना जो दिया गया है। वही मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे इंसिडेंट हुआ से लेके केस फाइलिंग तक,
जब कोर्ट में जाते हैं तब तक कौन फिर से क्या वाले क्या केस में, मतलब सेक्सुअल अब्यूज केस में? सेक्सुअल अब्यूज के, जो पॉक्सो के बच्चों का पूछ रहे हैं ना? यस राइट। तो जो बच्चों का अगर पॉक्सो का केस है तो उसमें मैंने पहले आपको बताया था कि उसमें आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी, रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंस हो गया, कि नॉन रिपोर्टिंग इज आल्सो ऑफेंस। तो उसके बाद प्रोसीजर बताया गया कि स्पेशल कोर्ट होगी उसमें, और स्पेशल कोर्ट में तो केस बाद में जाएगा। सबसे पहले क्या होगा कि हाउ टू रिपोर्ट द ऑफेंस, एग्जैक्टली, हाउ टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड। तो ये आ गया। अब बच्चे के साथ, किसी के साथ कुछ हो गया तो पुलिस क्या करती है, मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगी, होना क्या चाहिए और होता क्या। हाँ, होता क्या है? तो क्या होता है कि बच्चे को पुलिस स्टेशन बुला लिया जाता है, उसके पेरेंट्स को बुला लिया जाता है, उनको हरास किया जाता है, वो नहीं कर सकती पुलिस। तो लॉ बोलता है कि टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी पुलिस ऑफिसर है वो यूनिफॉर्म में नहीं जाएगा, ओके, ठीक है, और दैट शुड बी फीमेल प्रेफरेबली, ठीक है, मतलब जहां पे नहीं है वहां पे मेल भी जा सकता है, लेकिन प्रेफरेबली फीमेल, ठीक है, और नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। ओके। सो आप ये बोलो कि हौलदार जाओ जाके लिख लो, नहीं हो सकता। एएसआई जाके लिख लो, नहीं हो सकता। तो कम से कम सब इंस्पेक्टर, ठीक है, और प्रेफरेबली फीमेल, और नॉट इन यूनिफॉर्म, नॉट इन यूनिफॉर्म, और रिकॉर्ड द स्टेटमेंट इन द लैंग्वेज ऑफ चाइल्ड ओनली। ठीक है। अगर बच्चा खेलते खेलते, छोटा बच्चा है, वो खेल रहा है, खेलते खेलते आधी पचाधी बातें बता रहा है, तो रिकॉर्ड दैट। ये नहीं कि आप अपनी भाषा में लिखने लग जाओ, बच्चों से बच्चों की भाषा में बात करो ताकि बच्चा अनकंफर्टेबल ना हो। ठीक है, बिल्कुल। बच्चा कंफर्टेबल रहना चाहिए, और बच्चा जहां पे कंफर्टेबल है, तो दैट प्लेस कुड बी स्कूल, दैट प्लेस कुड बी रेस्टोरेंट, दैट प्लेस कुड बी उसका घर भी हो सकता है। बच्चे को किसी भी सूरत में आप पुलिस स्टेशन नहीं बुलाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारे एक जलंधर का केस था, तो मैंने रिपोर्ट किया, तो बच्ची को पुलिस वाली स्कूटी पे बिठा के लेके आ रही है, वो भी यूनिफॉर्म में। ऐसा क्यों किया उन्होंने? बेवकूफ है, उनको नॉलेज ही नहीं है इस चीज की, बेवकूफी बोलूंगी तो फिर ऐसा तो नहीं होता वो पुलिस ही लॉ को, एक तो आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दी उसने, ठीक है, दूसरी यूनिफॉर्म में गई, तीसरा बच्ची को पुलिस स्टेशन बुला के आप हरास कर रहे हो। यू कैन नॉट डू दैट। फिर वहां पे जाके मैंने, मतलब वो वहां पे अग्रेसिव होना पड़ता, वहां पे जाके मैं बहुत अग्रेसिव हुई, फिर मैंने वो सारा सॉर्ट आउट किया कि नहीं, आपने यू डिड दिस रॉन्ग, लेकिन उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट होती है, उसका भी कुछ नहीं बनता। ओके। तो ये प्रोसीजर नहीं फॉलो करते। ये प्रोसीजर ये क्या है कि बच्चे के साथ कुछ हुआ तो बच्चे ने जो रिपोर्ट किया, बच्चे के पेरेंट ने किया, तो उसको इन द लैंग्वेज ऑफ दैट चाइल्ड आप रिकॉर्ड करो, ठीक है, और एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई शुरू करो। चलो अभी यहाँ तक आ गए हम कि हमने रिकॉर्ड, उसके बाद बच्चे का मेडिकल होगा, और मेडिकल होगा। मेडिकल के लिए कंसेंट ऑफ पेरेंट और गार्डियन जरूरी है, बिल्कुल। अगर वो डिनाई कर दे नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, लेकिन मेडिकल करवा लेना चाहिए, बिकॉज मेडिकल एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है केस का। ठीक है, तो मेडिकल करवा लिया, और मेडिकल के लिए जो भी खर्चा आएगा वो उनको देखना पड़ेगा। आप उसको नहीं बोल सकते, पेरेंट्स को नहीं बोल सकते, लेकिन वो 100-250 रुपए की किट आती है, वो हमेशा पेरेंट से ही ली जाती है। फिर ऐसा क्यों है अभी? ये हमारा सिस्टम है। तो मेडिकल हम किसी भी हॉस्पिटल में करा सकते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट में नहीं, उसके लिए जो, देखो, ट्रीटमेंट किसी से हो सकता है, हॉस्पिटल जो मेडिकल कंडक्ट होना, वो उसके लिए स्पेशल जो डिस्ट्रिक्ट में होता है ना, चीफ मेडिकल ऑफिसर जो उस ड्यूटी लगाएगा, वही करेगा। तो उसके लिए स्पेशलाइज होते हैं, मोस्टली फीमेल ही होने चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट हो, जो इसकी एक्सपर्ट हो। ओके। तो जो मेडिकल ऑफिसर ड्यूटी बाउंड होता है, उसने करना आता, वो किसी को भी वो दे सकता है, वो मतलब लगे ही होता है, वो डेजिग्नेटेड होता है डॉक्टर, तो वो करेगा, वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक होता ही है। ठीक है, ठीक है जी। तो अब ये तो वो मेडिकल करेगा, मेडिकल भी हो गया हमारा जी। Then what is the next step? ओके, मेडिकल हो गया, तो उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, पुलिस अपनी इंक्वायरी करेगी, और विद इन 60 डे उनको जो है चालान पेश कर, अरेस्ट होगी। तो अब पूरी इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करके चालान पेश करना है, जो भी चार्जेस लगाने हैं, चार्जशीट रेडी करके 60 डेज में, विद इन 60 डेज। व्हाई दैट लॉन्ग टाइम? इतना लंबा टाइम क्यों? इतना लंबा टाइम लग जाता है, ये तो 60 डे तो फिर भी मिनिमम टाइम है, बाकियों में तो बहुत टाइम लग जाता है। नहीं, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी है ना, अभी हमें क्या पता कर रहे हैं ना हम लोग इसमें। हाँ, ठीक है, ये 60 डेज में इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या हुआ, कैसे हुआ,
तो पता ही नहीं चलता, वो प्रॉपर थॉरोली इन्वेस्ट। वैसे तो देखो कुछ केस होते हैं कि जरूरत ही नहीं पड़ती, वो क्लियर कट केस होते हैं, लेकिन अभी तो जो मेडिकल की रिपोर्ट है उसको आने में भी अगर उसका वो मतलब केमिकल एग्जामिनेशन के लिए गया हुआ, कोई सीमेन लिया जहाँ मतलब फ्लूइड लिया गया है, तो उसकी रिपोर्ट आने में भी तो टाइम लगेगा ना। बिल्कुल ठीक है। तो वो केमिकल की रिपोर्ट आएगी तभी जाके आपका केस स्ट्रांग होगा, तभी आप प्रूव करने के काबिल होगे, तभी वो जाएगा ना। तो मीनवाइल आप कंपनसेशन मिल जाती है बच्चे को, तो वो बच्चे की लाइफ तो स्मूथ चलने लग जाती है। तो जब चार्जशीट फाइल होगी उसके बाद बच्चे को कोर्ट में बुलाया जाता है, जबकि होना तो ये चाहिए कि बच्चा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बच्चे की रिकॉर्ड हो जाए स्टेटमेंट। इसके मीनवाइल बच्चे की एक बार मैजिस्ट्रेट के आगे स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है। ये होती है, उसके बाद चलान पेश हो गया, चलान के बाद फिर विद इन लाइक टोटल 6 मंथ का बोलते हैं, 6 मंथ में ये कंक्लूड करना कंपलसरी है, लेकिन होता नहीं है। तो फिर जो कंपलसरी है फिर होता नहीं है तो इसका क्या? तो वो वही है जी, एविडेंस में टाइम लग गया, ये हो गया, एक्सक्यूजेस होते हैं। अब ऐसा भी होता है कि जैसे कि क्राइम सीन का पता लग जाता है तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होती है, प्रॉपर वो बनाया जाता है उसका भी कैसे हुआ होगा, उसका पूरा नक्शा बनाया जाता है, मैप बनाया जाता है क्राइम सीन का प्रॉपर। तो वो सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन की जो चार्जशीट की रिपोर्ट होती है, तो जो अरेस्ट हुआ है उसके भी प्रॉपर राइट जो है उनको मतलब प्रोवाइड किया गया, कोई राइट वायलेट नहीं हुआ। जैसे अरेस्ट की है, किसने की है, मीमो ऑफ अरेस्ट भरा जाता है, मीमो ऑफ सर्च भरा जाता है, तो वो सारा कुछ उसमें मेंशन होता है चार्जशीट में। ठीक है, इंक्लूडिंग एविडेंस एंड ऑल। नॉर्मली ये कितना टाइम लगता है? जैसे डिपेंड करता है, ये वेरी करते हैं केस टू केस। कई केसों को साल भी लग जाते हैं, कोई केस 6 मंथ में कंक्लूड भी हो जाता है जिसमें क्लियर कट है। जैसे एक केस था अपना कपूरथला का केस था, बच्ची को निर्भया की तरह मारा गया, तो वो 6 मंथ में कंक्लूड हो गए थे। तो उसी तरह अभी ये गुड़िया केस है, हमने उसको नाम गुड़िया केस दिया है, तो अब वो बंदा ट्रेस ही नहीं हुआ, आपको पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। हाँ, बंदा ट्रेस नहीं हुआ फिर तो मुश्किल हो, पता ही नहीं ना। सो डिपेंड करता है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे हुई है। और इसमें सजा कितनी होती है? सजा डिपेंड करता है, अगर एग्रीवेटेड फॉर्म है और चाइल्ड इज बिलो 12, जहाँ किसी बच्चे के बीच में डेथ भी हो गई है, जहाँ कोई पर्सन ऑफ अथॉरिटी है उसने किया, तो उसमें डेथ पेनल्टी भी है, कुछ में 20 साल की सजा है। डिफरेंट ऑफेंस की डिफरेंट जैसे जैसे उसकी मतलब एग्रीवेटेड होती जाती है फॉर्म, वैसे वैसे सजा बढ़ती जाती है। तो केसेस अब पंजाब में 6 मंथ की सजा भी है नॉन रिपोर्टिंग की। अच्छा, नॉन रिपोर्टिंग की 6 मंथ की है। तो नॉर्मली अभी आपको क्या लगता है कि केस इंक्रीज हो रहे हैं, इट इज जस्ट अवेयरनेस की जिसके कारण वो सामने निकल के ज्यादा आ रहे हैं? सिर्फ दोनों चीजें ही है। पहले बहुत से केस होते थे जो दबा दिए जाते थे, बाहर ही नहीं आते थे, और अब सिचुएशन पूरे इंडिया की ये है कि अब लोग अवेयर हो रहे हैं, तो वो रजिस्टर्ड हो रहे हैं। और साथ में एक चीज ये भी हो रही है कि साथ में फेक केसेस भी बहुत हो रहे हैं। अब क्या हो रहा है, देखो चाइल्ड अब्यूज हमेशा लॉ में यस फेक केसेस क्या होता है कि बहुत ग्रे एरिया होता है लॉज में भी, जिसमें मिसयूज होने के चांसेस होते हैं। समटाइम क्या होता है, किसी की कोई दुश्मनी है तो अब बच्चे को ऐसे हाथ भी लगा दिया, दैट इज ऑल्सो क्राइम। और कई बोल देते हैं ऐसे में हमारे बच्चे के प्राइवेट पार्ट को इसने टच कर दिया, जिसका कोई प्रूफ ही नहीं होता। ठीक है, बच्चे ने बोल दिया हाँ मम्मी ने सिखा दिया उसको कि मुझे इसने टच किया, उनकी आपस में कोई रंजिश है, तो वो पॉक्सो में उसको पकड़ा देते हैं। तो ये मिसयूज हो गया। पॉक्सो का नॉन बेलेबल बिल्कुल बेल ही नहीं होती उसमें। तो फिर मेंटेनेबल नहीं है बेल। तो फिर हम ये आ गया कि लड़का लड़की बहुत टेंडर एज के हैं, टीनेजर्स हैं, उनमें रिलेशन बन गया, तो उसमें भी पॉक्सो लग जाती है अगर लड़की 18 से छोटी है, क्योंकि वहां पे कंसेंट इज इममटीरियल। अब लड़का 18 का, मान लो लड़का 16 का है, लड़की 17 की है, अभी रिसेंटली ऐसा केस आया है, तो लड़की 17.5 की है, लड़का 17 साल का है। तो दोनों में प्यार है, तब लड़के को तो अक्यूज माना जाएगा, लेकिन लड़की को माइनर माना जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा है कि जो जेजे एक्ट है, जिसमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बोलते हैं 2015 का, निर्भया के बाद बहुत इशू हुआ था कि आप जो माइनर होते हैं, जो क्राइम करने के काबिल होते हैं, उनको आप छोड़ देते हो।
ओके तो उसके बाद कुछ स्ट्रिक्ट प्रोविजंस आई थी। उसमें ये था कि 16 से 18 इयर्स का अगर कोई बच्चा कोई हीनियस क्राइम करता है तो उसको एज अ अडल्ट ट्रीट किया जाएगा। ओके तो अब क्या हो गया कि बच्चा 17 साल का है, उसको अडल्ट ट्रीट किया जाएगा। एंड अगर लड़की है वो जो है 17.5 की है, उसको माइनर ट्रीट किया जाए। ये ग्रे एरिया आ गया। बिल्कुल। तो अभी ऐसा ही मेरे पास केस आया है। ओके तो लड़का लड़की पिछले 2-3 साल से प्यार में थे, तो लड़की खुद अपने घर से आई, लड़के को ले गई और लड़के के ऊपर अब किडनैपिंग के चार्जेस लग गए हैं। साथ में उसके ऊपर केस लग गया 18 से छोटी उम्र की लड़की को प्रिक्योर करने का, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का लगा दिया। ओके अब पुलिस ने तो सोचा नहीं, अब बच्चा तो अंदर गया क्योंकि बच्चा 17 साल का है, उसको एज अडल्ट ट्रीट किया जाएगा, लेकिन लड़की को माइनर ट्रीट किया जाएगा। तो ये ग्रे एरिया आ गया। बिल्कुल। तो ये चीजों में भी मतलब कुछ है कि ऐसे केसेस भी बहुत आते हैं कि उनमें रोमांटिक रिलेशनशिप होता है तो लेकिन उसमें पॉक्सो लग जाती है। तो इसलिए वो लगता है पॉक्सो के केसेस राइज हो रहे हैं। तो बट रियलिटी में वो क्राइम नहीं होता, क्योंकि आज के टाइम पे सर 14 साल तक भी बच्चे को पता चल जाता है कि क्या है कंसेंट कहीं नहीं है। तो इसके लिए भी हमारे चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में भी बोला था कि 2000 केसेस, उन्होंने बोला जो रोमांटिक रिलेशनशिप वाले केसेस हैं तो वहां पे लीनियंट व्यू लेना जरूरी है। इवन हमारा जो अभी लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई है उसने भी यही बोला कि अगर लड़का लड़की की एज में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है और दोनों के रोमांटिक रिलेशनशिप थे तो इसको आप लीनियंट व्यू लो। और हमारी हाई कोर्ट तो इसमें है कि अगर ऐसा केस है तो उनमें मतलब आप ट्रायल मत चलाओ और केस को खत्म कर दो। ओके तो ऐसे है कुछ प्रोविजंस, लेकिन लॉ में नहीं है। अब उसको कुछ ना कुछ तो सॉर्ट आउट करना ही पड़ेगा ना, जो लॉ की कमी है उसको मिसयूज हो रहा है तो बचाना तो पड़ेगा ना। बच्चे तो बच्चे हैं ना, तो अब दोनों बच्चे हैं। प्रोविजंस तो बना रहे हैं, लॉ में क्यों डाल सकते उसको? तो फिर वो उसका मिसयूज होना शुरू हो जाएगा। फिर मतलब फिर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी केस में। हाँ। तो फिर सच में रेप करके बोल देगा ये तो कंसेंट थी। हाँ, ये बात तो क्या सही करोगे? सही बात है। तो वो बहुत चीजें हैं, वो हम ऐसे नहीं कर सकते। अगर उसको नहीं फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज करो। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये हो सकता है कि कंसेंट की एज कम कर दी जाए। ओके। वो 18 इज टू मच अभी के लिए। मुझे लगता है कि अभी 16 हो जानी चाहिए। यस राइट। तो 16 साल तक बच्चा है कैपेबल। अब लेकिन फिर वही आ जाता है कि फिर इसमें वो आ जाता है कि अलूरमेंट देके सेक्सुअल रिलेशन बना लिया। कंसेंट जो है वो फ्री विल नहीं थी। अब कंसेंट को भी डिफाइन करना पड़ेगा, क्या कंसेंट फ्री विल थी। अगर 18 के प्लस भी किसी ने कंसेंट दी है तो उसके साथ गई, घूमने फिरने गई, जैसे पिंक मूवी में दिखाते, लेकिन वो उसने रेप की इजाजत तो नहीं दी ना। राइट। ठीक। तो जहां फिर उसने बोल दिया कि मैं मतलब प्रॉमिस ऑफ मैरिज कर दिया, तो वो कंसेंट तो फ्री विल नहीं है उसकी। कंसेंट तो वो लग रहा है कि मेरा फ्यूचर जो हस्बैंड है मैं उसके साथ रिलेशन बना रही हूँ, लेकिन वो तो यूज करके भाग गया, तो वो चीज भी आ जाती है। तो इसमें ऐसा क्यों नहीं होता कि जैसे डाइवर्ट कर रहे हैं हम केस को, मतलब सिचुएशन को, कि एक लड़की ने मना किया, लड़के ने मना किया तो वो उसके अगेंस्ट है, मतलब वो प्रॉमिस किया उसने, और लड़की ने मना कर दिया तो मैं तो कहती हूँ दोनों के लिए होना चाहिए। ऑब्वियस है, लॉज शुड बी जेंडर न्यूट्रल। क्योंकि अभी वो देखो, ये तब की बातें हैं जब सिचुएशन वाज लाइक कि औरत को दबाया जाता था एंड वी वर नॉट इक्वल दैट टाइम। नाउ वी हैव राइट टू इक्वालिटी, वी आर इक्वल बिफोर लॉ। हम पढ़ रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम हर जगह पे जा रहे हैं। तो ये जो प्रॉमिस ऑफ मैरिज है इट शुड बी जेंडर न्यूट्रल अगर किया, और वो दोनों पे होना चाहिए। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि अगर लड़का अपनी वर्जिनिटी लूज करता है ना, अभी भी इट इज नॉट अ बिग थिंग, वो तो मान की बात मानी जाती है। लेकिन लड़की अगर वर्जन नहीं है तो वो तो अभी भी बुरी चीज है लड़की के लिए, है ना। इसके लिए मैं एग्जांपल दूंगी कि पंजाब में होता है कि लड़के ने लड़की के साथ भाग के शादी कर ली, ठीक है, तो वो बोलते हैं लड़का लड़की निकाल लाया। हाँ बिल्कुल सही बात है। और लड़की ने शादी कर ली, लड़की निकल गई। अब फर्क देखो ना, ये माइंड सेट है कि खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे गिरे, नुकसान किसका है? खरबूजे का ही है। राइट। तो चक्कर ये है बेसिकली इस टाइप के जो चाइल्ड सेक्स अब्यूज के केसेस होते हैं, इसमें
कौन इन्वॉल्व होते हैं मेनली, कि मतलब आसपास के, जैसे बोला जाता है कि फैमिली मेंबर्स होते हैं, आसपास के लोग होते हैं जिनका आना जाना है, या सो मींस अक्यूज कौन होता है? एक्यूज कौन होता है? ज्यादातर केसेस में बच्चे को वही शिकार बना पाएगा जो बच्चे के ट्रस्ट का है। ओके। सो मोस्टली जो केसेस रजिस्टर्ड भी होते हैं, जो फैक्ट्री हैं, वो हमेशा पर्सन ऑफ ट्रस्ट ही होता है। वो फैमिली में हो सकता है, और वो टीचर भी हो सकता है, वो कोई रिलेटिव भी हो सकता है, और वो कोई पापा का फ्रेंड भी हो सकता है। तो वो कोई भी हो सकता है जो बच्चे और बच्ची की फैमिली का बहुत ट्रस्टवर्दी पर्सन होता है, वो ही हमेशा ज्यादातर केसेस में चाइल्ड सेक्स अब्यूज का जो अक्यूज होता है, ज्यादातर केसेस में। लेकिन बहुत केसेस ऐसे भी होते हैं कि बच्चों के साथ दोस्ती बिल्ड कर लेते हैं। समटाइम क्या होता है कि बच्चे स्कूल में है, बच्चा किसी चीज के कारण परेशान है, तो कोई इंसान को पता चलता है कि ये बच्चा परेशान है, तो वो बड़ी प्लानिंग करता है, वो बच्चे के साथ दोस्ती करता है, क्योंकि बच्चा ऐसे तो किसी के साथ नहीं जाएगा ना, ऑब्वियस है। तो बच्चे के साथ दोस्ती करेगा तभी जाएगा। जैसे हमारे पास एक केस था, ये जो मैंने अभी आपको बताया 6 मंथ में वो हो गया। तो बच्ची का पड़ोसी था, बच्ची को रोज टॉफी ला के देते था। तो फिर एक दिन उसने बोला कि आजा मैं तुझे दिलवा के लाता हूँ टॉफी। बच्ची उसके साथ चली गई, उसके साथ फिर उसने निर्भया जैसा हरकत की। तो ऐसी एक बच्ची अपने नानके आई हुई थी, जिसको अभी इंसाफ नहीं मिला। वो बंदा आया बच्ची को, चल तुझे पपीता दिलवा के लाता हूँ। उसने बच्चे को वो किया, और उसने एक जो सीवरेज की पाइप होती है वहां पे जाके उसको सेक्सुअली असॉल्ट किया। तो ऐसे ऐसे केसेस होते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें कोई मतलब बच्चियों को उठा के ले जाते हैं, तब करते हैं। तो सो डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो डिपेंड करता है कि, और पेरेंट भी होते हैं बहुत में। अब मेरे पास केस है अभी अब मेरे पास 2 तो फादर के केस है, एक फुफ्फड़ का केस है, एक मदर का केस है। ओके। मदर ने सेक्सुअली असॉल्ट किया अपने खुद के बेटे को, 2 साल के बेटे को। अभी वो बच्चा 6 साल का है। 2020 का केस है, लेकिन सामने अब आया। तो उसमें मदर ने अपने बॉयफ्रेंड, मदर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर थे एक लड़के के साथ। तो उसका बॉयफ्रेंड रोज उसको मिलने आता था। अपने हस्बैंड को वो नींद की गोली दे देती थी, तो हस्बैंड सो जाता था और बच्चे को लेके दूसरे कमरे में वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती थी। अक्सर मिलती भी थी। उसकी फोटोज ही मिली हैं, वो वेरीफाई भी हो गई हैं कि फोटो वो बिल्कुल ओरिजिनल है, फोटो मॉफ्ड नहीं है। हाँ जी, फोटो क्यों क्लिक कर रहे थे? वो साइकोलॉजी है कुछ लोगों की, पता नहीं क्यों खींच के रखते हैं। ये देखो, ये हरकतें कोई नॉर्मल पर्सन थोड़ी ना करेगा, ऑब्वियस है। तो ये कोई मेंटली सिक ही करेगा। तो वो फिर मेंटली सिक के अलग अलग तरह के, पता नहीं उनको क्या खुशी मिलती होगी, क्या चीज है। उसने फोटो संभाल के रखी हुई थी अपने फोन में, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने बच्चे के साथ। और एक फोटो है जिसको देख के जज साहब की भी शक्ल, मतलब जज साहब भी शॉक्ड हो गए। मदर ने ऐसे अपने हाथ से बच्चे का हाथ जबरदस्ती पकड़ के ऐसे अपने बॉयफ्रेंड के जो प्राइवेट पार्ट है उसको पकड़ा हुआ है बच्चे के साथ, और बच्चे को जबरदस्ती, मतलब फोटो है जिसमें वो थोड़ी ब्लर होगी, बच्चे को जबरदस्ती मतलब बोल रही है कि उसको में डाल। शिट। मदर। पता नहीं कहाँ जा रही दुनिया। फादर है, एक जलंधर का केस है। तो ये जो फादर वाले केस होते हैं ना, उसमें मदर कमजोर पड़ जाती है। हमारे पास एक फिरोजपुर में केस आया था 2021 और 20 में। तो उसमें थी 3.5 साल की बच्ची थी। मदर फादर की लड़ाई होगी, फादर ने ड्रिंक कर ली, और ड्रिंक करके उसने अपनी ही बच्ची को सेक्सुअली असॉल्ट कर दिया। बच्ची वॉज एडमिटेड इन, ये फिरोजपुर का केस है, बच्ची वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल। उसको चलो कंपनसेशन एंड ऑल वो हुआ, लेकिन बाद में मदर हॉस्टाइल होगी और फादर को बेनिफिट ऑफ डाउट देके कोर्ट ने छोड़ दिया। ऐसे केस तो मदर को भी फिर करना चाहिए, करना तो चाहिए, यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस चाहिए। और अभी ऐसा केस है हमारे पास आया था 2022 में। 14 साल की बच्ची थी, वो उसको रिपीटेडली उसका फादर जो है सेक्सुअली असॉल्ट कर रहा था। देन शी गॉट प्रेग्नेंट, एंड फिर फादर को पता चला कि अब वो प्रेग्नेंट हो गई है, तो उसने उसको वो मिसकैरेज वाली कोई दवाई ला के दी, और बच्ची के साथ वो थोड़ी खींचातानी कर रहा था, और बच्ची के ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, और पब्लिकली ही मतलब वो सारा इंसिडेंट हुआ, ब्लीडिंग हुई। तो पता चला कि बच्ची को उसका फादर अब्यूज करता था, और उसने मरी हुई बच्ची को बर्थ दिया अपने फादर की को। और उस केस में जब तक तो कंपनसेशन मिल रही थी कुछ ठीक था।
अब मैं उसकी मदर को बार बार कांटेक्ट कर रही हूँ, लेकिन वो कांटेक्ट ही नहीं कर रही। आई थिंक सो कि वो मदर अब कहीं ना कहीं हॉस्टाइल होने की प्लानिंग कर रही है, और क्या हो रहा है क्या नहीं है वही बोल रहा है ना, मदर वीक हो जाती है। राइट। अब लड़की पे क्या बीतेगी जब उसका फादर दोबारा आ जाएगा अगर बाहर। खैर उसमें केस स्ट्रांग है, DNA की रिपोर्ट है, सब कुछ है, सो चांसेस तो नहीं है बचने के, बट फिर भी अगर आ जाएगा। और ये वो फादर है जिसने ये बोला था जब हमने बोला कि तूने अपनी बेटी के साथ क्यों किया, वो बोला अपनी के साथ ही किया, किसी और के साथ थोड़ी ना किया। सीरियसली? यस। तो क्या साइकोलॉजी है। सो देयर इज नो गिल्ट। अभी जो दूसरे वाला फादर था फिरोजपुर वाला, उसको गिल्ट थी कि आई मेड ब्लंडर, मैंने अपनी बेटी के साथ गलत कर दिया, गुस्से में आके मुझे पता नहीं चला। तो ही वॉज इन गिल्ट, सो ही वॉज नॉट हैबिचुअल क्रिमिनल। बट ये जो अपनी 14 ईयर्स की बच्ची के साथ कर रहा है, ये तो हैबिचुअल है। जो बोल रहा है अपनी, उसको लग रहा है कि मेरी बेटी है, मेरी तो प्रॉपर्टी है, मैं कर सकता हूँ। उसकी साइकोलॉजी देखो कितना वो शार्प क्रिमिनल होगा। एक मैम ये क्वेश्चन आता है कि इस टाइप के जो क्राइम्स होते हैं, मतलब कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी किसी एक लेवल की बात करते हैं हम, नॉट अबाउट दिस पर्टिकुलर अलग किस चीज पे जाते हैं, किस टाइप के लेवल के, मतलब मिडिल लेवल पे आते हैं, लोअर मिडिल लेवल पे आते हैं लोग? देखो जो क्रिमिनल है ना, वो पता नहीं, इसका इकोनॉमी के साथ कोई लेना देना नहीं है, या फिर कोई की जैसे होता है ना कि नहीं, मैं आपको बताती हूँ ना, साइकोलॉजी है, इसके बहुत सारे फैक्टर हैं। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर हो सकता है, लेकिन दैट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग। सोशल इकोनॉमिक जो ज्यादा हमारे पकड़े जाते हैं कि ये ज्यादा जी, जो मिडिल क्लास, जहाँ पुअर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, जहाँ लोअर पुअर जो लोअर क्लास है उसके लोग ज्यादा क्राइम करते हैं, उसमें ज्यादातर केसेस क्या होते हैं, वो बलि के बकरे होते हैं। क्राइम किसी बड़े ने किया होता है, उनको बचाने के लिए, आपको नठारी कांड पता होगा, उसमें मतलब बहुत सारे केसेस हैं जहां पे केस किसी बड़े का होता है, लेकिन उसका इल्जाम कोई छोटा अपने सर पे उसका नौकर ले लेता है। इस पे बहुत सारी फिल्में भी तो बनी हैं कि जो ड्राइवर है उसको फंसा दिया जाता है, केस किसी और ने किया होता है। तो ये रियलिटी है हमारी सोसाइटी की कि जब पता चलता है तो वो अपना जो जुर्म होता है, पैसा लेकर वो किसी अपने नौकर पे डाल देते हैं। तो रियलिटी पे क्राइम किसी और ने किया होता है और इल्जाम किसी और पे चला जाता है। ये चीजें भी होती हैं हमारे इंडिया में, तो बहुत होती हैं ये चीजें, क्योंकि यहाँ पे बहुत इनइक्वालिटी है, फाइनेंशियल जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। तो ये क्लास का तो नहीं है कि कौन सी क्लास है, हाँ, लेकिन साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि कुछ लोग जो मानसिक रूप से पहले से ही किसी ना किसी दिक्कत में होते हैं, जिनको एनी सॉर्ट ऑफ मेंटल अब्यूज, जहाँ कोई मेंटल सिकनेस होती है, तो वो बहुत प्रोन टू बी या क्रिमिनल होते हैं। तो वो लोग क्या, मतलब पहले जैसा भी कुछ होता है कि वो ड्रग एडिक्ट है या ड्रिंक करने के एडिक्ट? डिपेंड करता है कि किस चीज के साथ कौन ट्रिगर होता है। कुछ ड्रिंक करके बहुत अच्छे भी बन जाते हैं, कुछ ड्रिंक करके हैवान बन जाते हैं। ये उनके ट्रिगर पॉइंट पे डिपेंड करता है कि वो किस चीज से कैसे ट्रिगर होते हैं। हमारे लोगों में काम इतना ज्यादा बढ़ गया है, अब कुछ लोग तो सिर्फ पोर्नोग्राफी देख के ही सॉफ्ट टारगेट ढूंढ के वो करते हैं, और कुछ लोग बड़ी क्लास के बने बैठे हैं, लेकिन वो सॉफ्ट टारगेट हमेशा उनको होता है कि हमें छोटी बच्चियां मिले, वो उनको अब्यूज करते हैं। सो ये बोलो कि बहुत ही गंदी सी बात है कि ये उनकी फैंटेसी है, उस पर डिपेंड करता है कि, और हमें नहीं पता कि हमारे बीच में कौन सा बंदा ऐसा अब्यूजर होगा। जो सही दिख रहा है लोगों के सामने, उसके अंदर भी वो हैवान हो सकता है, और किसकी क्या फैंटेसी है वी डोंट नो अबाउट दैट, और वो फैंटेसी ही उसको लीड करती है टू डू दैट क्राइम। तो अभी जैसे अब जब ये कोई केस होता है तो पुलिस का फर्स्ट रिएक्शन क्या रहता है? पुलिस सपोर्टिव रहती है या इररिस्पेक्टिव? डिपेंड करता है पुलिस ऑफिसर प्लस दूसरी पार्टी पे। अच्छा, अगर तो किसी गरीब के साथ हुआ है, ठीक है, दूसरा भी गरीब है, हाँ, फिर तो पुलिस अपनी ड्यूटी करेगी, भाई तूने गलत किया, तुझे सजा दे रहा। ठीक है। दूसरी पार्टी अमीर है, एक साइड पे गरीब है, तो पुलिस का झुकाव होगा कैसे एक्यूज को बचाना है और कितने पैसे लेने हैं। अगर पुलिस वाला ईमानदार नहीं है तो। अब जो मैंने मदर वाला केस भी आपको बताया था, ये जो मदर ने किया, ये 4 साल तक क्यों नहीं आया? क्योंकि लोगों को नॉलेज ही नहीं है कि ये कोई चाइल्ड सेक्स अब्यूज का केस है। जब पुलिस तक गया, पुलिस ने बोला कि ये तो फोटो में पकड़ा ही हुआ है,
इसमें क्या है, इसमें ये थोड़ी ना दिख रहा है, उसने मुंह में डाला। भी अब मुंह में डालते कि भी वो वीडियो बनाती, ठीक है। और हाथ से, पुलिस को यही नहीं पता कि हाथ से पकड़ा हुआ भी क्राइम होता है। बच्चे से आप बच्चे को प्राइवेट पार्ट पकड़ा रहे हो, दैट इज ऑल्सो क्राइम। राइट। बच्चे का प्राइवेट पार्ट टच कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो क्राइम। लोगों को यही नहीं पता, तो पुलिस को नॉलेज ही नहीं है। सो डिपेंड करता है कि पुलिस कैसा रिएक्ट करेगी। और अगर कोई अमीर है तो पुलिस का रिएक्शन क्या होता है कि इनसे पैसे ले लें, और लड़की वालों को क्या मिलेगा आपको, आपकी लड़की की कल को शादी नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसी चीजें बोलते हैं। और अगर दोनों मतलब सेम एज के हैं तो पुलिस को होता है FIR रजिस्टर करो, केस को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो, और जितना हो सकता है इनसे पैसा लो। ये पैसे की गेम बहुत खराब करती है। तो जब एक बार FIR रजिस्टर हो गई है तो विदाउट कोर्ट जाए वो सब में कैंसिल भी हो जाएगा? हो सकता है कैंसिल की, अगर कुछ नहीं हुआ, अगर दोनों हॉस्टाइल हो गए पहले भी हो जाएगा कैंसिल। वो डिपेंड करता है सर। चार्जशीट से पहले पहले वो कैंसिल हो जाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है। अगर कैंसिलेशन भी फाइल होती है, उसमें भी जो पार्टी होती है उसके पास मतलब राइट रहता है कि वो जाके उसको प्रोटेस्ट करके प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर दे कैंसिलेशन के अगेंस्ट। वो होता है, लेकिन जिसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाता है वो वहां तक पहुंचने खत्म हो जाता है केस। तो आपको क्या लगता है कि कितने केस कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में खत्म हो जाते हैं? सर ये ना वही बात है कि ये डिपेंड करता है। कुछ कॉम्प्रोमाइज सही होते हैं, बच्चे के फ्यूचर के लिए जरूरी होते हैं, जैसे वही रोमांटिक रिलेशनशिप वाला केस है, तो वहां पे कॉम्प्रोमाइज इज अ बेटर ऑप्शन देन एनीथिंग एल्स। वहां पे और जहां पे कंसेंचुअल रिलेशन होता है किसी ना किसी टाइप का, वहां पे भी कॉम्प्रोमाइज बेटर है। हाँ, जहां पे हीनियस क्राइम है, क्राइम ही 12 साल से छोटे बच्चे के साथ है, उसमें बच्चे की कंसेंट इज इमटेरियल, और वहां पे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। वही है कि ये डिपेंड करता है कि हम मतलब कौन से केसेस में है, कौन से में नहीं है, और कितने % होता है। ये डिपेंड करता है कि केस कैसा है। तो अभी जितने जो केसेस आते हैं उसमें क्या एवरी टाइम और मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज गर्ल, राइट? मैक्सिमम गर्ल्स होती हैं, क्योंकि बॉयज वाले रिपोर्ट नहीं होते। बॉयज के केसेस, अब बॉयज सिर्फ छोटे बच्चे ही इस चीज का शिकार नहीं होते, बड़े भी होते हैं, लेकिन लड़के इस चीज की रिपोर्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि लड़कों को तो बहुत स्ट्रांग प्रेजेंट किया जाता है ना। तो लड़के का तो रेप ही नहीं होता, सोसाइटी ये सोचती है, राइट। तो लड़के के साथ अब्यूज हो गया तो उसको तो जी बहुत गलत सोचा जाएगा। लड़के की तो शायद, लड़की का तो जस्टिफाई कर देते हैं, लड़के का कैसे जस्टिफाई करेंगे? लड़के को बोला जाता है कल को तेरी शादी नहीं होगी, तुम्हें तो वाइफ नहीं कंसीडर कर गया। हमारे यहाँ पे इनके लिए तो बहुत गंदे गंदे शब्द भी मतलब है, उसको सीधा गे बना दिया जाता है, और अच्छा ही नहीं माना जाता। तो मतलब उसको बड़े अजीब अजीब टेम्पू ये वो ऐसे शब्द दिए जाते हैं, तो वो रिपोर्ट ही नहीं करते। लड़के का जो अब्यूजर होता है हमेशा एक ही होता है, और वो बार बार उस लड़के को अब्यूज करता है, और बच्चे की मेंटल जो हालत है वो खराब हो जाती है। और देयर आर चांसेस कि जो फ्यूचर में जाके रेपिस्ट बनते हैं ना, तो उन्होंने बचपन में ऐसा सेक्सुअल अब्यूज खुद फेस किया होता है। ओके। ये जो स्टडी बताती है, मान लो कि किसी के साथ बचपन में सेक्सुअल अब्यूज हुआ, तो वो बड़ा होके वही सॉफ्ट टारगेट ढूंढ के जो पेन अपनी है ना, दूसरों की पेन और चीखों से उसको डोपामिन रिलीज होता है उसका। ओके। तो वो उस चीज को लेके खुश होता है, दूसरे की चीखों, वो साइकोपैथ बन जाता है। तो वो खुद क्राइम करता है ऐसा, दूसरों को शिकार बना के। सो अभी जैसे जो केस होता है उसमें पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होता है? मेनली जो पेरेंट होते हैं वो उस केस को दबाने की कोशिश कर रहे होते हैं, या फिर वो स्टार्टिंग में तो देखो ये भी डिपेंड करता है कि आपका सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है। कुछ पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, वो बोलते हैं हम लुट जाएंगे लेकिन फाइट करेंगे। हाथरस उन्नाव केस आपको याद होगा, देखो सब बर्बाद हो गया लेकिन फाइट किया, है ना। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि माँ फादर ने किया और मदर एट द एंड कॉम्प्रोमाइज कर गई कि ठीक है कोई बात नहीं, गलती होगी। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे भी पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहेगा।
ज्यादातर अगर लड़का लड़की के जो बड़े वालों के केस होते हैं तो वहां पे तो पेरेंट्स को, अगर दूसरी जात का है, यहाँ पे जात रोल प्ले करती है। ओके। अगर दूसरी जात का है तो वो 100% FIR रजिस्टर कराते हैं, लेकिन अगर सेम कास्ट के तो वो शादी के लिए जाते हैं। अच्छा। अगर शादी के लिए नहीं मानते तो फिर वो इस शादी के लिए प्रेशर डालने के लिए ही करते हैं ज्यादातर, कि अगर लड़का लड़की है उनकी हो गया कुछ, तो माँ बाप को लगता है कि, लड़की के पेरेंट को लगता है कि लड़के की ठीक है, फैमिली अच्छी है, कल को हम ऐसी जगह ही शादी करना चाहते हैं, तो वो उनको प्रेशराइज करने के लिए भी करते हैं। तो नॉर्मली कैसे कितने केस आते हैं आपके पास इस टाइप के? जो ये शादीशुदी वाले होते हैं ये मेरे पास कम आते हैं, ये तो मेरे पास 1-2 ही आए हैं मेरे पास। दूसरे, क्योंकि मैं ज्यादातर से जो न्यूज में आते हैं ना, जो ज्यादा हीनियस होते हैं केसेस, तो मैं उन पे फोकस करती हूँ जहाँ पे बच्चे को जस्टिस की जरूरत है, जहाँ पे पेरेंट्स ऑलरेडी खुद है, वेल ऑफ है, तो व्हाई शुड आई जंप इनटू दैट। सो आपकी मैं सिर्फ पहले बोला कि मैं अनहर्ड को सपोर्ट करूंगी, मैं कॉम्प्रोमाइज वाले केसेस में नहीं जाती, मैं जहाँ पे जस्टिस की जरूरत है वहां पे जंप करती हूँ। सो जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है स्पेसिफिकली इस टाइप के केसेस में आप फ्री एडवाइस प्रोवाइड करते हैं? जी, फ्री सिर्फ एडवाइस नहीं, फ्री प्रॉपर लीगल एड, इवन उनकी एजुकेशन, सब कुछ का ध्यान रखते हैं। ओके। सब कुछ, लेकिन प्रोवाइडेड कि वो लिटरली नीडी हो, जिसके पेरेंट्स ही हमें लगता है ना बहुत तेज हैं, तो उसकी हम नहीं लीगल एड प्रोवाइड करते। तो वो हमें लगता है कि कुछ पेरेंट्स ही ऐसे होते हैं, बच्चों को यूज कर रहे होते हैं, तो वी डोंट प्रोवाइड हेल्प देम किसी भी टाइप की। ओके। हाँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि पेरेंट्स जैसे भी हैं लेकिन बच्चा सही है, तो बच्चे को हेल्प की जरूरत है, देन मैं एज एडवोकेट उनकी हेल्प कर देती हूँ। बट अनहर्ड विक्टिम तो वो हुआ ना जो अपनी आवाज ही नहीं उठा सकता, जिसके पास है ही नहीं। Okay. और ज्यादातर मेरे पास केसेस होते हैं जिनमें बच्चे को उनके रिलेटिव ने, जैसे हमारे अभी 20 साल की सजा हुई है, एक चाचा था, वो अपनी ही भतीजी जो ऑर्फन थी उसको लगातार अब्यूज कर रहा था। तो अब वो 2 बहनें हैं, वो मेरी अपनी बच्चियां ही हैं, आई एम सपोर्टिंग देम जितना भी कर सकती हूँ। तो अभी पढ़ा के एक को तो वकील बनाना है, दूसरी अब बोथ आर वेरी ब्राइट चिल्ड्रन। अच्छी लड़कियां हैं, पढ़ने में भी अच्छी हैं। तो चाचे को सजा हो गई है, तो उनको जितना सपोर्ट करना वहां पे बनता है करना। तो आपको कैसे पता लगता है फिर कि बच्चे कांटेक्ट कर लेते हैं, कभी न्यूज से पता चल जाता है, जैसे भी पता, वी हैव डिफरेंट सोर्सेस, तो जैसे भी पता चल जाता है वैसे हेल्प कर देते हैं बच्चों की। जैसे कुछ न्यूज में आ जाता है, कुछ लोगों को मेरे बारे में पता है, वो मुझे बता देते हैं, जिसमें पेरेंट्स छुपाने की कोशिश कर रहे होते, लेकिन बच्चा का कंप्लेंट करना चाहता है। जैसे ना एक केस था अभी यहाँ मोहाली का ही केस था कि एक थोड़ी सी हैंडीकैप थी लड़की, तो उसको कुछ लोगों ने गैंग रेप किया। तो लेकिन वो पूरी कोशिश की हम लोगों ने कि वो FIR करा दे, लेकिन पेरेंट्स नहीं माने, क्या करें, बच्चा भी नहीं आया आगे। हमने रिपोर्ट भी की लेकिन वो बात नहीं बन पाई। तो ऐसे भी केसेस आते हैं। So नॉर्मली मैम जब कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो वो पेरेंट्स को इमीडिएटली कंप्लेंट करनी चाहिए, या देयर इज अ विंडो कि वो विद इन दैट टाइम फ्रेम दे कैन कंप्लेंट? सो सर वैसे तो जब भी पता चलता है इमीडिएट करनी चाहिए, ऑब्वियस है, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं है। इसमें तो आप 20 साल बाद आके भी कंप्लेंट कर सकते हो कि ऐसा हुआ था। ओके, सो 20 साल के बाद भी मतलब पर एविडेंसेस का क्या होगा? नहीं होगा ना, लेकिन लॉ बोलता है कि आपकी स्टेटमेंट इज मोर देन एनफ। तो वो आगे ट्रायल चलने के बाद की बात है। आपने मी टू मूवमेंट के बारे में सुना ना? yes, right. जैसे उसमें आके, तो ये अगर आपके साथ कुछ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है तो आप कभी भी आके बोल सकते हो, कभी भी कंप्लेंट कर सकते हो, लेकिन वो केस इतने स्ट्रांग नहीं रहते। तो मान लो जैसे मुझे कब पता चला, 20 साल के बाद पता चला कि दैट आई सफर्ड दैट सेक्सुअल अब्यूज एंड आई नो हु डिड दैट, आई नेवर फाइल्ड एनी कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, क्योंकि मुझे पता था कि मैं स्टेटमेंट भी दे दूंगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑब्वियस है, ठीक है, देयर इज नो एविडेंस एंड ऑल, वो मुझे पता है। कुछ लोग कर भी देते हैं, कुछ एविडेंस भी होते हैं, लेकिन वो इस चीज में ना पता है क्या है कि कर्मा प्लेज अ ग्रेटर रोल देन आ कोर्ट। मतलब जो भगवान की सजा होती है ना, वो ये हमारी कोर्ट से ना इससे कहीं ज्यादा बड़ी होती है।
तो जैसे जो इन माय केस हु वाज द अब्यूजर, तो उसके बच्चों ने नहीं उसको बुलाना छोड़ दिया. जब मैंने उसके बच्चे, आई स्टिल रिमेम्बर, उसकी बेटी की शादी थी, तब मैंने उसके साथ शेयर किया कि योर डैड डिड दिस. तो उस बच्ची ने तब से अपने फादर को बुलाना छोड़ दिया. वो मेरे साथ खड़ी हुई, उसकी वाइफ, उसके बच्चे मेरे साथ खड़े हैं. तो इससे बड़ी क्या बात होगी, इससे बड़ी सजा क्या होगी? सही बात है. ठीक है. और मुझे पता है कि उसने सिर्फ मुझे नहीं, उसने पता ही नहीं कितनी लड़कियों को और भी अब्यूज किया होगा, लेकिन कोई बोली नहीं. मैं आई एम इन दैट पोजीशन दैट आई कैन स्पीक अबाउट दैट, बट एवरी गर्ल इज नॉट इन दैट पोजीशन दैट शी कैन स्पीक अगेंस्ट दैट. बिकॉज जिस सिचुएशन में है, सबके कुछ के घर बन गए होंगे, कोई किस सिचुएशन में होगा, कोई, ये बहुत हिम्मत चाहिए अपना सच दुनिया को बताने के लिए. राइट. क्योंकि लोग आपको जज करते हैं. आप तभी ये चीज बता सकते हो जब आपको किसी की परवाह ना हो. सही बात है. ठीक है. पहले तो बताने की हिम्मत ही नहीं होती. क्योंकि ये रहता दुनिया क्या सोचेगी. लेकिन पहाड़ में जाए दुनिया क्या सोचती है, सच तो बोलो ना. क्योंकि आज मैं सच बोलूंगी तभी बच्चे मुझे सच बताएंगे. So ma'am, what is the role of social media in today's life in such kind of cases or other type of cases? Do you think कि social media influence करता है जज के decisions को? Yes. मैं ना कल एक हनी सिंह की इंटरव्यू सुन रही थी. उसने बोला कि उसने कोई गाना गाया जिसके कारण उसको कुछ सिख अपोज कर रहे थे. तो कहता कि भी नशे करता हूँ एंड ऑल. तो कहता जो लोग मेरी वाह वाह कर रहे थे, मुझे वो नहीं, जो मेरा पुतला साड़ रहे थे, मुझे वो लोग ने परेशान किया. और उसने ये बोला कि फिर मैंने 4 ये वोदका वाला केस जो सॉरी गीत था वो गाया. तो कहता वो गाना मैंने, मेरे दिमाग में है कि मैं ये नशा, मुझे नशेड़ी बोल रहे, मैं नशा इनकी नस्लों में डाल दूंगा. देखो कितनी गलत बात है. और ये चीज हुई. हमारे बच्चे 4 बोतल वोदका का गाना जैसे उसने गाया और हर बच्चा उस पर डांस कर रहा था. तो इसका इन्फ्लुएंस तो होता है. बिल्कुल. बहुत सी मूवीज भी आई हैं इस पे. सोशल एक हादसा नाम का एक वेब सीरीज आई है, उसमें दिखाया कि कैसे इस चीज का असर होता है. जो डांस कंपटीशन होते हैं छोटे बच्चों को होता है कि उसमें जाना है, तो उसमें एक दिखाया गया है, वो दैट इज रियलिटी, कि एक बच्चे को इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि उसके जो ऑर्गन्स हैं, जो उसके बॉडी पार्ट्स हैं, वो थोड़े मतलब उसको बड़ा दिखाएं, तो वो उसमें पार्टिसिपेट कर सके. तो ऐसी ऐसी चीजें भी होती हैं और बच्चों पे इन चीजों का असर होता है. जो छोटे बच्चे क्राइम करते हैं, जैसे कई बार केस आता है हमारे पास, अभी जलंधर से एक आया था, जलंधर स्कूल में हो गया था कि बड़ी क्लास के बच्चे ने छोटी क्लास की बच्ची को सेक्सुअली अब्यूज किया. तो वो कैसे होते हैं, वो जो देख लेते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, जहाँ कोई पोर्नोग्राफिक कंटेंट उनके सामने आ जाता है, उनको ये नहीं पता होता कि उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है. तो वो हरकत कर देते हैं. मतलब इमेच्योर हैं, लेकिन वो चीजें होते हैं. जैसे राजपुरा के एक ऑर्फनेज के भी आए थे कि कुछ बच्चे सोडोमी कर रहे हैं आपस में. तो उसमें भी यही था कि बच्चों को पता ही नहीं था वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली उन बच्चों से बात की, तो उनको पता ही नहीं था वो क्या कर रहे हैं. तो वो पता नहीं होता, लेकिन जो उन्होंने सोशल मीडिया पे देखा होता है, जो उन्होंने मीडिया पे देखा होता है, लेकिन उनको बिना समझाए, बिना बताए कि बेटा ये कैसे गलत है, तो उनको रोक दिया, तूने ये नहीं देखना, तूने ये नहीं करना. तो उनको क्यूरियोसिटी जाग जाती है कि ये क्या है. राइट. तो वो करते हैं. एग्जैक्टली. तो वहां पे समझाया जाए. इसीलिए सेक्स एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स. क्योंकि सेक्स एजुकेशन में हम ये नहीं बताते कि क्या क्या करना है, हम ये बताते कि बेटा क्या करना गलत है और इसका क्या इफेक्ट होगा. जब आप उसकी क्यूरियोसिटी खत्म कर देते हो, उनको हर चीज का आंसर दे देते हो ये कैसे नुकसानदायक है, तो वो सेटिस्फाई हो जाते हैं और वो ऐसी हरकत नहीं करते. तो बच्चे जो भी चीज करते हैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी करते हैं. राइट. तो बेसिकली उनके क्यूरियोसिटी को खत्म करो. तो ये असर रहता है सोशल मीडिया का एंड उसका हमारी लाइफ पे. एग्जैक्टली. तो अभी ये तो हमने बात की थी कि लाइफ पे तो असर है, लेकिन पर क्या जज के डिसीजन पे भी असर होता है इसका? नहीं. सी, सोशल मीडिया ट्रायल और मीडिया ट्रायल एंड कोर्ट रूम के ट्रायल में बहुत फर्क होता है. अगर इन चीजों का असर होना होता तो ये अभी लेटेस्ट है जो कोलकाता वाले केस में हुआ,
तो वहां पे स्पेसिफिकली जज साहब ने बोला जो सोशल मीडिया में आ रहा है उसको साइड पे रखो, अफेक्ट की बात करो। तो कोर्ट में मीडिया क्या बोल रहा है, न्यूज क्या बोल रही है, उसका असर नहीं होता। उसमें सिर्फ आपके फैक्ट क्या बोलते हैं, आपके एविडेंस क्या बोलते हैं, उसका असर होता है। और मीडिया जो मर्जी बोले उसका नहीं होता। मीडिया तो समटाइम किसी को क्रिमिनल बनाता था, वो रियलिटी में क्रिमिनल होता ही नहीं है। तो मीडिया के जो मतलब शो करते हैं, जिसको किसी को अच्छा कर रहे हैं, किसी को बुरा कर रहे हैं, इस टाइप के केसेस में, सो कन्विक्ट को भी है ना। देखो, मीडिया प्लेज अ गुड रोल, करना चाहिए, क्योंकि पुलिस पे प्रेशर डालने के लिए मीडिया से अच्छा कोई भी नहीं होता। लेकिन मीडिया समटाइम उस चीज को मिसलीड कर देता है। तो हर टाइम पुलिस क्यों सोचती है कि इसको नहीं किया जाए, मतलब इन चीजों को आगे ना लिया जाए, लेके जाया जाए, केसेस फाइल ना किए जाए? डिपेंड कर, देखो पता है क्या होता है सर, वो भी चीजें हैं कि ऑब्वियस, अगर देख किसी को यही नहीं पता कि जो FIR है दैट इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन ऑफ क्राइम। FIR को सोचा जाता है पता ही नहीं कितनी बड़ी चीज होगी। FIR जस्ट एक इंफॉर्मेशन होती है, उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी है, उसके बाद अगर वो इंफॉर्मेशन सही है तो आगे बढ़ेगी, वरना खत्म हो जाएगी। ठीक, हमारे लिए तो इंफॉर्मेशन ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। राइट। और FIR रजिस्टर होगी, ये नहीं है कि हर FIR में अरेस्ट हो जाती है, नहीं, उसमें पहले नोटिस भी दिया जाता है। नोटिस देना जरूरी है। जैसे 7 साल से कम वाले सजा वाले केस है तो उसमें 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा। मैट्रिमोनियल केसेस है उसमें 14 डे का नोटिस दिया जाएगा, चेक किया जाएगा क्या क्राइम हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है, उसके बाद अरेस्ट का बनता है। लेकिन लोगों को नॉलेज ना होने के कारण ये चीजें होती है। और रही बात पुलिस की, तो पुलिस, अब हमारा सिस्टम इतना करप्ट है तो पुलिस वालों को किसी भी चीज के पैसे नहीं सरकार से मिलते। अब एक इन्वेस्टिगेशन में उसका इतना पैसा खर्च आता है, चाहे वो रेड करने जाना है, चाहे उसने ट्रायल के लिए जाना, किसी भी चीज, हाई कोर्ट में आप देखो जाके, वकीलों के अलावा सारी पुलिस ही पुलिस दिखेगी, लेकिन वो सारे अपनी पॉकेट से पैसे खर्च के आते हैं। वो क्यों? सरकार देती नहीं है उनको। तो फिर लॉजिक क्या वो पुलिस वालों को रखने का? इसीलिए तो वो करप्शन करते हैं। अब उन्होंने अगर किसी से रिप्लाई भी रेडी करना, उसके लिए भी उनको पैसे देने पड़ेंगे। एडवोकेट से रिप्लाई रेडी करना है, ठीक है, उसके लिए पुलिस अपनी पॉकेट से पैसे देती है, तो वही तभी वो करप्शन करती है। अगर सरकार इनको प्रॉपर फैसिलिटी देगी तो पुलिस ऐसा करेगी नहीं, वो अपना काम एफिशिएंटली करेगी। तो हम, पहले तो हमारे पुलिस कम है, दूसरा हम इनको पैसे नहीं प्रोवाइड करते। अगर एक पुलिस स्टेशन है उसमें व्हीकल ही नहीं होते, ठीक है, मैंने ऐसे भी देखे हैं जो रेड करने के लिए भी बेचारे किराए पे गाड़ियां करके जाते हैं। सीरियसली? यस, जितने भी पूरे पंजाब से, हरियाणा से, कहीं भी चंडीगढ़ या हाई कोर्ट में आते हैं तो अपनी पॉकेट से पैसे खर्च करते हैं। कौन सरकार उनको पैसा देती है? देती नहीं है। तो एक केस की इन्वेस्टिगेशन में लाखों रुपए खर्च आ जाते हैं, तो वो वाइड करते हैं कि यार कौन अपनी पॉकेट से लाखों रुपए खर्च करेगा। जिसमें पैसे आ जाते हैं FIR कर देते हैं, क्योंकि उनका कोटा पूरा हो जाता है, जो खर्चने हैं वो भी निकल जाते हैं, अपनी जेब में भी चले जाते हैं। सही बात, समझ गए? तो अगर सरकार उस चीज के लिए प्रॉपर पैसे देगी तो क्यों वो ऐसी बातें करेंगे? सही बात है। इसीलिए किसी गरीब का बोलते हैं ना, गरीब की सुनवाई नहीं होती, क्योंकि उनको पता है कि ये कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्या फायदा केस करने का। सही बात है, बिल्कुल। सो मैम, जैसे कि एक देयर इज अ स्टडी, अकॉर्डिंग टू दैट स्टडी इन 2022 US में अप्रोक्सीमेटली 4.5 लाख केसेस हुए थे अगेंस्ट फॉर द रेप, and whereas in India it was around 31,500 something, so जो कि बहुत ही कम है। जबकि US एक वो कंट्री जो डेवलप्ड कंट्री है, their education system, their judiciary system, or all things are better than us, लेकिन वहाँ पे केस ज़्यादा है, हमारे इंडिया में कम है। So what do you think? What is the difference? Is it स्टैटिक्स ना मत देखो ना, okay? आप ये देखो कि वहाँ पे नॉलेज है इसलिए वहाँ पे रिपोर्टिंग ज्यादा है। हमारे नॉन रिपोर्टिंग केसेस ज्यादा है। So it is just the knowledge, और जो कि लोग आगे बात कर रहे हैं, वहाँ पे नॉलेज है, वहाँ पे छोटी सी चीज को माना जाता है कि यस दिस इज ऑफेंस, तो वो इसलिए वहाँ पे रजिस्ट्रेशन आज रिपोर्टिंग ऑफ ऑफेंस ज्यादा है। हमारे तो वहां पे तो मैरिटल रेप को भी माना जाता है कि इवन इफ योर वाइफ इज नॉट गिविंग कंसेंट यू कैन नॉट
मतलब डू एनी फोर्सफुल रिलेशन विद हर, राइट। बट हमारे तो यहाँ पे वो लीगल है, समझ गए? यस, तो यस, यस। ये वही है कि हर चीज में ग्रे एरिया होता है। तो यहाँ पे Exact. नॉलेज ना होने के कारण मैक्सिमम जितने केस रिपोर्ट होते हैं उसमें तो फेक ज्यादा होते हैं, रियल केस कम होते हैं, और जो रियल केस है वो रिपोर्ट ही नहीं होते। हमारे यहाँ पे नॉन रिपोर्टिंग का इशू है। राइट। ओके मैम, थैंक आपका यू। ये मतलब आपकी जो बात का है। बाकी यस, ये इंडिया बदनाम किया जाता है। इंडिया इज नॉट ओनली कंट्री कि यहाँ पे रेप होते हैं, रेप हर जगह पे ही हर होते कंट्री हैं, में है। ठीक है। कुछ लॉ सख्त हैं, जैसे इस्लामिक जो सरिया लॉ, शरीयत का लॉ है, इस्लामिक लॉ है, तो वो बहुत सख्त है। वो बोलते हैं कि अगर कोई ऐसा करता है उसका प्राइवेट पार्ट काट दो, उसका सर कलम कर दो पब्लिक में। तो ऐसे ऐसे है, कुछ बहुत सख्त है, कुछ को पब्लिक में शूट कर दो। तो ऐसे ऐसे कानून है बहुत जगह पे। हमारे यहाँ पे फांसी की सजा है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि केस टू केस वेरी करती हैं चीजें। हमारे यहाँ पे मैरिटल रेप सिर्फ एक ही है, वो है कि अगर आप सेपरेशन में हो, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों सेपरेट रह रहे, फिर आके हस्बैंड उसके साथ रिलेशन बनाता है, लेकिन वो बेलेबल ऑफेंस है, तो उसमें उसको आराम से बेल मिल जाती है। Okay. तो हमारे बहुत सारी चीजों के लिए वी आर नॉट सीरियस, और जानकारी ना होने के कारण कुछ लोगों को पता है, जैसे ये बच्चे वाला केस था कि मदर ने बच्चे को बॉयफ्रेंड के आगे पेश किया एंड ऑल, जो भी चीजें हैं। 4 साल तक लोगों को भी पता चला, पंचायत में गया, बहुत लोगों के पास गया वो, तो किसी ने भी FIR रजिस्टर ही नहीं कराई, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था कि ये दिस इज ऑल्सो ऑफेंस। तो ये भी चीज है, ये भी रीजन है। हाँ, अभी आपने बोला पंचायत का नाम लिया तो मुझे क्वेश्चन याद आया जी कि इस टाइप की केसेस जबकि गांव वगैरह में जब होते हैं या रूरल एरिया में, तो वहां पे पंचायत भी काफी इन्फ्लुएंस करती है इस टाइप के। बिल्कुल करती है। तो उनका क्या रहता है, दबाने का देखो डिपेंड करता है, वही है कि पार्टी कैसी है उस पर डिपेंड करता है। ओके। जिसके साथ गलत हुआ वो भी, और जिसने गलत किया वो भी, दोनों कैसे, किसके पास कितने के रिसोर्सेज है, किसका कितना इन्फ्लुएंस है, ये भी केस की रजिस्ट्रेशन प्लस उसके आगे जाने में और उसके कॉम्प्रोमाइज में जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे देश में। तो अभी जब मैं आपके बारे में थोड़ा रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक चीज जानने में आई थी, 295 ये ओके। सो कुछ बताओगे इसके बारे में? आपने मूसे वाला का गाना नहीं सुना, सच बोलेगा तो लग 295? हाँ जी, बिल्कुल। सो आई वाज वेरी वोकल, इवन आई एम टुडे आल्सो, बट अभी थोड़ा सोच समझ लेती हूँ कि कितना कैसे सही रहेगा। ओके। तो आई वाज वेरी वोकल, तो मैं बिल्कुल ही नहीं सोचती थी बोलने से पहले। तो किसी और चीज की बात कर रहे थे, तो मुझसे गलती से एक मैंने एग्जाम्पल दे दी। Okay. तो उस चीज को तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया गया। मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन की बात की कि इंसान आज बुरा है तो कल को अच्छा भी हो सकता है। तो मुझे जो मैंने बचपन में सुना था, वाल्मीकि जी की कहानी सुनी हुई थी, तो बंदा बहादुर की भी हम कहानी सुनते हैं कि ही वाज वैरागी थे, उन्होंने वो शिकारी थे, उन्होंने एक हिरनी का मतलब तीर मारा तो हिरनी प्रेग्नेंट थी, तो उसके बाद वो बैरागी बन गए, उसके बाद गुरु साहब ने उसको बंदा बहादुर बना दिया। तो ऐसी एग्जाम्पल्स मैंने वाल्मीकि जी के बारे में कोट कर दी, तो लोगों को नहीं अच्छा लगा। जहाँ उस समय मुझे जो लगता है कि उस समय की सरकार को नहीं अच्छा लगा, बिकॉज आई वॉज सेक्रेटरी PPCC, देयर वाज अ टाइम आई वॉज वेरी मतलब close to that circle of Captain Amrinder Singh, and he became CM. एंड मैंने उनकी इलेक्शन में भी बहुत काम किया था। इवन उनके मैनिफेस्टो में जो पॉइंट्स थे वो भी मैंने दिए थे, वो उन्होंने ऐड किए, जैसे गर्ल एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, और यूनिवर्सिटी का मुद्दा भी था, और जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें उनकी फीस नहीं होनी चाहिए, UPSC की तरह होना चाहिए। Okay. ऐसे कुछ चीजें थी जो मतलब मैंने 2017 में को बहुत अच्छी तरह सपोर्ट किया था। सेक्रेटरी रही हूँ PPCC की। आई वाज द यंगेस्ट फीमेल टू बी अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी PPCC दैट टाइम इन 2016। एंड फिर जब वही सरकार काम ना करे तो वही कुछ दिख नहीं रहा था, देन आई स्टार्टेड स्पीकिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ओके।
दैट गवर्नमेंट वो काम नहीं करते, और कैबिनेट वाज वेरी मच बिजी विद हिज फ्रेंड। जिस चीज के लिए हम अपने देश के सीएम, अपने स्टेट के सीएम को चुनते हैं, वो नहीं काम कर रहे थे। तो मैं बहुत वोकल होके उनके अगेंस्ट बोलने लग गई। तो वहां पे तभी एक केस हुआ था फरीदकोट में, एक लड़का था जसपाल, जिसको कस्टोडियल डेथ उसकी हुई थी। कस्टोडियल डेथ ही नहीं हुई थी उसकी कस्टडी में, बल्कि उसकी जो डेड बॉडी थी उसको भी डिसअपियर कर दिया गया था। ओके। एंड मैं उस केस में बहुत बुरी तरह इन्वॉल्व रही हूँ। उस केस को बाद में सरकार की तरफ से रफा दफा कर दिया, बिकॉज हाई प्रोफाइल जो पॉलिटिकल लीडर थे इस पार्टी के, वो उसके साथ कनेक्टेड थे। ओके। तो उसके कारण फिर ये मुझसे पूरी तरह चिढ़ गए थे। एक ग्रुप था जो मतलब हमेशा सपोर्ट करता था, और जो अभी में चले गए वो लोग नहीं लाइक करते थे कि हाँ ये अच्छा, अभी वो लोग जो बीजेपी में चले गए हैं तो उनको नहीं पसंद था। तो ये पॉलिटिकल था, तो वो एक ग्रुप को मेरे खिलाफ भड़काया गया, मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। और ये सितंबर का इशू है जब मेरी ये स्टेटमेंट थी। वो मेरी 27 मिनट की वीडियो थी चाइल्ड सेक्स अब्यूज में, उसमें से सिर्फ 5 सेकंड की एक वीडियो क्लिप लिया गया, उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, लोगों को मेरे खिलाफ भड़काया गया। तो पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट मी दैट मेरे अगेंस्ट पुलिस FIR होनी चाहिए, और मेरे खिलाफ 28 कंप्लेंट्स दी गई थी पूरे पंजाब में। 28 कंप्लेंट्स। एंड सितंबर का इंसिडेंट सेम इंसिडेंट पे, यस। एंड दिसंबर में, सितंबर का इंसिडेंट और दिसंबर में मेरे खिलाफ FIR लॉन्च होती है। और उस टाइम लॉन्च होती है जिस टाइम मैंने फिरोजपुर के एक गांव में 6 केस डिटेक्ट किए थे चाइल्ड सेक्स अब्यूज के। अच्छा। और वो पूरी कम्युनिटी, गांव पूरा अगेंस्ट हो गया था मेरे। सो कहीं ना कहीं उसके साथ भी लिंक है कि वो उसके बाद वो केस भी मतलब गांव वाले नहीं चाहते थे कि उसको प्रोसीड किया जाए। मैंने पुलिस को बुलाया, बच्चों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई, एंड ह्यूमन राइट्स के पास भी वो कमीशन के पास भी वो केस चला। लेकिन उसमें मतलब कहीं ना कहीं वो उन सारी चीजों से मेरा ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि मेरे पे FIR तब होती है जब मैं फिरोजपुर में चाइल्ड सेक्स अब्यूज के अगेंस्ट कैंपेन कर रही हूँ। अच्छा। तो मेरी कोलैबोरेशन हो गई थी स्कूल एजुकेशन बोर्ड से, मुझे लेटर आ गई थी कि मैं पंजाब के सारे स्कूल्स, चाहे वो सरकारी है, प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहां पे जाके चाइल्ड सेक्स अब्यूज के अगेंस्ट अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट कर सकती हूँ। इवन कृष्ण कुमार जी के साथ ये भी प्लान हुआ था कि मैं टीचर्स को भी ट्रेनिंग दूंगी। तो वो सारी चीज को किसी तरह डिस्ट्रॉय करने के लिए हो सकता है, क्या हो सकता है ये तो भगवान जानता है। देन पुलिस स्टार्टेड सर्चिंग मी एंड आई वाज वेरी शॉक कि हो ही नहीं सकता, बिकॉज मैंने ऑलरेडी जितनी भी कंप्लेंट थी वो DGP से क्लब करवा के मोहाली मंगवा ली थी और सारी डिस्पोज ऑफ हो गई थी। तो ये कौन सी कंप्लेंट रहेगी जो अभी भी मेरे खिलाफ चल रही है। तो वहां पे प्रोटेस्ट हुआ और FIR हुई। वो 3 लोगों पे हुई थी FIR, मेरे ऊपर और एक जी न्यूज वाले जो डायरेक्टर है, वो लव कुश सीरियल था उसके अगेंस्ट थी। एक वैष्णो माता मंदिर है जो उनके मेन पंडित थे, उनके खिलाफ थी। और वो सबको छोड़ के मेरे ऊपर फोकस करने लग गए, बिकॉज मैंने उसका बड़ा रिवेलियन सा, मैंने उसका विरोध किया कि ये नहीं होना चाहिए। और उसमें उसके साथ मेरे पे लगा था SC/ST एक्ट। SC/ST एक्ट एट्रोसिटी जो SC कम्युनिटी के साथ, SC ट्राइब्स के साथ होती है, उसको खत्म करने के लिए है। तो उनकी प्रिवेंशन के लिए। और यहाँ पे तो मैंने कोई एट्रोसिटी की ही नहीं थी। तो वो एक्ट बेसिकली टू प्रोटेक्ट एट्रोसिटी है कि उस कम्युनिटी को बचाना। ऑब्वियसली बात है, बहुत साल से उन लोगों के साथ बहुत तरह के धक्का होता है, बहुत जैसे विमेन के साथ शुरू से होता है। तो वो भी एक लोग हैं जिनके साथ बुरी तरह से ट्रीटमेंट होता है और दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड। यस, एंड दैट एक्ट वाज फॉर दैट पर्पस कि उनके अगेंस्ट एट्रोसिटी, और वो मेरे ऊपर लग गया। एंड दैट वाज वेरी शॉकिंग कि ये कैसे हो सकता है। तो वो तो हो गया, लेकिन फिर मेरी अरेस्ट के लिए मीनवाइल मेरी पूरी बार एसोसिएशन ने बोला कि हम क्वेश्चन डालेंगे बिकॉज दिस इज नॉट राइट, बिकॉज जो बनता ही नहीं है वो केस कैसे बन गया। क्योंकि केस बनता नहीं है, क्योंकि उसके कंटेंट्स देखते हैं हम, तो वो डेलिब्रेशन होनी चाहिए। यहाँ पे कोई डेलिब्रेशन नहीं है। मैंने कोई नफरत नहीं फैलाई, मैंने सिर्फ एक कोट किया है, वो भी एग्जाम्पल दी है, और वो किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं की। और फिर क्या हुआ, वो अमृतसर में
रेल जाम कर देगी मेरी अरेस्ट के लिए। सीरियसली इतना Yes. बड़ा प्रोटेस्ट? इतना बड़ा। तो जब रेल जाम कर देगी तो फिर मुझे भी बहुत फील हुआ कि मेरे कारण उस टाइम ना कुछ गवर्नमेंट एग्जाम था और दैट टाइम मुझे बहुत हर्ट हुआ कि मेरे कारण कुछ लोग पेपर नहीं दे पाए और आई नेवर वांटेड कि मेरे कारण एनवायरनमेंट खराब हो। Okay. तो आई डिसाइडेड कि नहीं, मैं अरेस्ट दे दूंगी, कोई बात नहीं है। और मेरे पापा, मेरे ताया जी, एंड ही सपोर्टेड मी, ही सेड इट्स ओके, फेस इट। तो हम लोग भी जेल में रहे हैं, अगर कुछ करना है पंजाब में तो तुम्हें ये तो जाना ही पड़ेगा भाई, जो तू करती है तो ये चीजें तो होती ही हैं। तो ही सपोर्टेड मी एंड मैंने अरेस्ट दे दी। फिर मेरी अरेस्ट हो गई, अरेस्ट होके मेरी जमानत लगी, हाई कोर्ट से मेरी जमानत होगी, हाई कोर्ट से जमानत होती है, नेक्स्ट डे फिर मुझे अनदर FIR में उठा लिया गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा एक और FIR सेम टाइप की होगी, एज पर लॉ नहीं हो सकती। तो देन वी फाइल रिट इन दी हाई कोर्ट, बिकॉज मुझे लॉ का पता था इसलिए ये पॉसिबल हुआ। तो रिट फाइल की, देन मेरी फर्दर किसी भी केस में ना तो मेरे ऊपर वो सेम इंसिडेंट पे FIR पे भी रोक लगी और सेम इंसिडेंट पे मेरी अरेस्ट पे भी रोक लग गई। तो दोबारा बेल हो गया और आई स्पेंड 55 डेज इन जुडिशियल कस्टडी। Seriously, 55 days? 55 days. And for me, that was my wonderful time. I learned a lot. अच्छा। आप बहुत सी कहानियां सुनते हो अंदर। तो बीइंग अ लॉयर, मैं जब अंदर गई और मैंने इतना कुछ देखा और अनदर एस्पेक्ट मेरे माइंड में आया कि नेवर हर्ड अ वन साइड स्टोरी। तो मैं पहले क्या करती थी, किसी ने बोला कि मेरे साथ अब्यूज हुआ तो मैं वो झंडा उठाया और चल पड़ती थी। देन अब मैंने बोला नहीं, थोड़ी एनालिटिकल एबिलिटी अपनाओ, केस को अच्छी तरह जांचो, सही है भी एक गलत, बिकॉज बहुत से लोग थे जो अंदर, और आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ द विक्टिम जो कल्प्रेट नहीं थी, लेकिन आई वॉज इनसाइड द जेल। राइट। तो उससे मुझे ये चीज सीखने को, और मुझे एक और चीज सीखने को मिली, पहले मैं सबको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करती थी। ओके। तो आई वॉज नॉट अर्निंग फ्रॉम माई प्रोफेशन दैट टाइम। मैं सिर्फ फ्री लीगल एड प्रोवाइड करती थी, बहुत रेयर अगर मुझे कोई दे जाता था फीस में ले लेती, मैं फीस ही नहीं लेती थी। अच्छा। सो दैट वाज माय नेचर। बट दैट टाइम आई डिसाइडेड कि अब मैं अंदर गई हूँ तो मेरे ऊपर पैसे मैंने खर्चे हैं, तो ये कोई भी नहीं आता किसी की भी हेल्प करने। अगर कल को और बड़ी मुसीबत आ जाए, मेरे पेरेंट्स ना हो, ठीक है अभी, तो कौन मेरी हेल्प करेगा? कोई भी नहीं। तो मेरे लिए फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को सेटल करना जरूरी है। देन आई स्टार्टेड, मैंने अपनी कंसल्टेशन के चार्जेस भी रख दिए, तो मैंने चाइल्ड सेक्स अब्यूज को छोड़ के बाकी सबके लिए फीस फिक्स कर दी। ओके। तो दैट वाज मस्ट। तो मैं वही बोल रही हूँ, वंडरफुल टाइम इसलिए था बिकॉज मैंने अपनी जिंदगी में जो गलतियां करी थी वो सीख के आई कि नहीं, अगर आप सोसाइटी में कुछ चेंज करना चाहते हो, इफ यू वांट टू हेल्प समवन, फर्स्ट यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ। सो इन शॉर्ट कि वो 55 डेज आपको रीथिंक करने के लिए, यस दैट वाज प्लानिंग फ्यूचर के लिए, बिल्कुल बिल्कुल दैट वाज द वंडरफुल टाइम। फोन से दूर हो आप, क्योंकि आप रोज कहानियां सुन रहे हो, यस पढ़ रहे हो, कहानियां सुन रहे हो और आराम से रेस्ट भी कर रहे हो, जो पत्नी कितने सालों से की ही नहीं थी। सो व्हाट वाज द एनवायरनमेंट ओवर देयर? क्योंकि जब आप यू वर इन जेल, आइदर इट इज जुडिशियल कस्टडी और जो भी है, जेल तो था, जुडिशियल कस्टडी है, जेल तो जेल है, जेल तो जेल है। तो एनवायरनमेंट कैसा था वहां पे? एनवायरनमेंट देखो किस टाइप के लोग थे? मैं क्योंकि पढ़ी लिखी हूँ, मैंने बोला कि एक सेक्ट मेरी हेल्प भी कर रहा था, तो मेरे लिए तो अच्छा ही था। मेरे ऊपर कोई ये नहीं है कि भी पॉलिटिकल प्रिजनर है तो कोई मार कुटाई कर दी जैसे सुनते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं था? ऐसा कुछ नहीं है। इट इज जस्ट यू कैन नॉट गो आउट। ओके। आप आराम से अंदर घूमते हो, आराम से रहते हो, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें दिखाया जाता है कि जेल में पता नहीं कितनी बुरी हालत हो जाती है, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। सो इट वाज जस्ट बिकॉज़ कि यू वर इन जुडिशियल कस्टडी? नो, सबके साथ ही ऐसा है। वहाँ के जो सब आराम से रहते हैं, फैमिली की तरह रहते हैं। ये देख लो कि एक बहुत बड़ा घर है और आप उस घर के बाहर नहीं जा सकते। बिग बॉस में जा रहे हो आप? हाँ मतलब हाँ, बिग बॉस में जा रहे हो। बिग बॉस में तो फिर भी बहुत सारी चीजें, बट हाँ सॉर्ट ऑफ बिग बॉस में जा रहे हो। यस, सॉर्ट ऑफ कि आप वहां पे हो, सुबह उठ रहे हो, सुबह उठ के पहले अरदास करते हैं तो सबको उठाया जाता है। मेरे साथ पहले तो लीनियंसी थोड़ी सी हुई कि नहीं तुम नहीं उठना, नहीं, फिर बाकी बोलने लगे कि ये वकील है तो इसको आप थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट दोगे।
तो फिर मैंने बोला नहीं कोई बात नहीं, मैं टाइम पे उठ जाऊंगी, क्योंकि वो तो बहुत जल्दी उठते थे, 4 बजे उठ के बंदी खुलाना बोलते उसको। अच्छा। तो उठ के फिर पाठ करते, हमें तो आदत ही नहीं है 4 बजे उठने की। हाँ, सही बात है। तो फिर ठीक है, धीरे धीरे चीजें सेटल की। और मुझे सोने की आदत नहीं थी, वो तो 10 बजे सो जाते हैं, तो मैं अपनी थोड़ी सी लाइट के साथ, लाइट नहीं बंद करते वहां पे, ओके। ताकि कोई कुछ गलत ना कर ले। और वॉशरूम भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, दीवारों से दिखता है, तो पहले पहले बहुत ऑकवर्ड लगता था कि यार ये कैसे होगा कि जो भी हम कर रहे हैं, नहा भी रहे हैं, तो वो सबको दिखता है। धीरे धीरे अब हो जाती है कि ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज कल को कोई सुसाइड कर ले, कुछ भी कर ले, तो पता तो चलेगा ना। तो वो प्रिकॉशन जरूरी है, लेकिन ये नहीं है कि वहां पे सफाई भी होती है, खाना भी अच्छा होता है। जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो अपना खाना खुद बनवा लेते हैं, तो वहां पे सब कुछ अंदर होता है, दुकानें भी होती हैं। दुकानें भी? हाँ, दुकानें होती हैं अंदर। अच्छा। अंदर पनीर, दूध, सब्जियां, सब कुछ आता है। ओके। हाँ, सब कुछ आता है, शैम्पू, ये वो अमृतसर जेल में तो ब्यूटी पार्लर भी था अंदर। क्या बात है। जिम भी था अंदर, और लाइब्रेरी भी थी। तो पूरा दिन का शेड्यूल क्या रहता था वहाँ पे? पूरे दिन का शेड्यूल, जैसे सुबह उठो तो मैं वहां पे कुछ आंटीज के साथ दोस्ती कर रखी थी, तो उनको पढ़ाने में भी टाइम लग जाता था, फिर खुद भी पढ़ती थी। और फिर 2 टाइम रोटी के लिए मैंने, एक औरत थी उसको जरूरत होती थी, तो उसकी हेल्प कर देती थी, वो मेरे लिए खाना बना देते थे। मैं पनीर बहुत खाया मैंने, देसी घी भी, मतलब बहुत खाया मैंने। वहां पे चाय भी वो बना के देते थे अच्छी, वो चूल्हा सा बना लेते हैं, तो बालन मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, सब लीगली मिलता है। ओके। हाँ, ये इलीगल नहीं है, लीगली आता है सब कुछ। दूध कितना मंगाया, अखबार आता है, मेरा न्यूज़पेपर भी लगा हुआ था। तो इसका जो पैसा देना होता है वो मतलब वो अपनी पॉकेट से देना। पॉकेट से, और पॉकेट हाँ, में जेल की करेंसी होती है अपनी। अच्छा, जेल की करेंसी है। जेल की करेंसी होती है। हमने जितने मेरे पैसे मैंने उनको दे दिए, तो वो उतने कूपन दे देते हैं, तो वो जेल की करेंसी होती है। और आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे? तो पैसे तो मेरे घर वाले दे के जाएंगे ना। अच्छा, फिर वो घर वाले जो पैसे दे के जाएंगे उससे करेंसी ले लेती जेल। करेंसी लेके आप। यस 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 यस। ओके, सही है। तो वो सही है। वहां से मैं, मतलब वहां पे लेडीज को, अमृतसर जेल इज अ सेंट्रल जेल, तो वहां पे तो उनको ब्यूटी पार्लर भी अंदर थी। कभी कोई फेशियल करा रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, अपने मतलब इफ यू कैन अफोर्ड यू कैन। सो ऐसा कुछ नहीं था कि जैसे मूवीज वगैरह में भी दिखाते हैं कि वहां पे दिन में ये काम करना पड़ेगा, ये काम साइन करें? वो आपके लिए नहीं है, वो जो कन्विक्शन में होते हैं, जिनको सजा मिल चुकी होती है, सख्त सजा मिली होती है, उन्होंने काम करना था, हर एक ने नहीं काम। अच्छा। अब यहाँ पे पंजाब में क्या काम होगा? पंजाब में क्या काम है? खाना बना लो, सफाई कर लो, तो ऐसी ड्यूटी होती है। तो मेरी तो वो भी नहीं लगेगी, बिकॉज आई वाज अंडर ट्रायल। तो मेरे लिए तो कोई भी काम करने को था ही नहीं। ऐसे तो हम लोग संडे को सारे बैठ के पाठ करते थे, देग बनाते थे, बहुत अच्छा। मतलब ऐसा नहीं होता। जेल में एक और चीज होती है, जो फैमिली के लोग हैं, या मतलब कोई भी इन रिलेशन है जो इकट्ठे हैं जेल में, मेल और फीमेल, तो उनकी मुलाकात भी होती है एक दिन। वो इकट्ठे एक दूसरे के लिए यहाँ से खाना बना के जाते हैं, सज के जाते हैं, मिलते हैं। तो ऐसा भी होता है। सो ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ ये है कि आपको एक टेरिटरी के अंदर रहना पड़ता है, और विद सर्टेन रूल्स। दैट्स इट। पंजाब की जेल्स आर मच बेटर देन एनी एल्स। सो अभी फिर आपका केस का क्या हुआ? फिर वो क्लोज हुआ, क्या हुआ? नहीं, अभी चल रहा है, मैंने क्लोज किया ही नहीं है। अभी चल रहा है? हाँ, बिल्कुल चल रहा है। वो अब पहले अभी 3 केस थे, 3 में से 2 तो मतलब डेड ही हो रखे हैं, एक ही चल रहा है मेन अमृतसर वाला। और लाइक कि वे सारे के सेम ही चीज के लिए हाँ, तो एक साथ सेम ही है, तो वो क्लबिंग की जरूरत नहीं, क्योंकि यही क्वैश हो जाएगा, तो उसके साथ बाकी सारे बंद हो जाएंगे। ओके। तो वो वही बोल रही हूँ ना, बाकी सब डेड सिचुएशन में उसके साथ कनेक्टेड है। तो लास्ट आर्ग्यूमेंट है, जनवरी की डेट है, और अमृतसर जो ट्रायल की डेट है वो मेरी अभी 29th की है। आई विल गो देयर। ओके। स्टे है मेरे ट्रायल्स। ओके 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 जी, ठीक है मैम, ठीक है। सो दैट इज इंटरेस्टिंग स्टोरी। हाँ, मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगी तो खत्म होगा ना। आई एम नॉट रेडी फॉर दैट। ओके। बिकॉज मैंने कुछ किया नहीं है, व्हाई शुड आई कॉम्प्रोमाइज? सो जो ये केस जो हुआ वो अपनी इच्छा से वापस लेना चाहें तो ये किसी कम्युनिटी ने किया था, पर्टिकुलर एक पर्सन ने किया है? नहीं, ये कम्युनिटी को खड़ा कर दिया। कम्युनिटी तो क्यों, मेरे जिनकी मैं हेल्प करती हूँ और जो मेरे सर्कल में रहते हैं वो सारे ही ऐसी कम्युनिटी के हैं, और मैं डिस्क्रिमिनेट करती ही नहीं हूँ।
तो वो कम्युनिटी क्यों मेरे अगेंस्ट है? वो तो कुछ पर्टिकुलर लोग है ना, ग्रुप ऑफ पीपल है। ग्रुप ऑफ पीपल है, मतलब ये तो फिर भी ये होता है कि ये वाली नहीं, वो कास्ट को मैं सारे देखो, वो वाल्मीकि कम्युनिटी के कुछ लोग हैं, ठीक है, सारे थोड़ी ना है। तो मैं जिन बच्चों की हेल्प करती हूँ उनमें भी वो है, तो कम्युनिटी तो मेरे अगेंस्ट कोई भी नहीं है। वो तो ये है कि एक ग्रुप को मेरे अगेंस्ट खड़ा कर दिया गया। तो उनको फिर ये ना कोई फंडिंग तो दे रहा होगा कहीं भी, यार तुम लोग पता नहीं, अब वो उनकी है, लेकिन वो चलता होगा उनका। कभी उनसे बात नहीं हुई डायरेक्टली फेस टू फेस? नहीं, उनके एडवोकेट से बात होती रहती है, वो हाई कोर्ट में होते हैं। अच्छा। तो उनसे तो मैं बात करती रहती हूँ, वो मुझे पूछते भी है भी कैसे है। मैंने बोला लेट्स फाइट, देखा जाएगा क्या होगा। ओके। तो वो भी बोलते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं, अब मैं मतलब जो बातें होती है यहाँ पे नहीं, उनको भी फील तो होता है, वो उन लोगों को भी फील होता है कि हमने गलत किया है। ओके। लेकिन वो एक ईगो पे आ जाती है। अब ईगो पे आ गया तो अब तो लड़ना तो पड़ेगा। हाँ, वो ईगो पे आ जाती है, उनकी भी ईगो पे है कि हाँ ठीक है। तो मेरी तो ईगो पे नहीं है, मुझे तो ये है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो ठीक है, इट्स ओके, आई विल फाइट। ओके मैम, सो लेट्स कम टू योर एक चीज और है सर, अगर कोई नॉर्मल इंसान है ना, उसके लिए ट्रायल फेस करना एंड ऑल बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं शायद एक लॉयर हूँ, मुझे पता है क्या होगा। हाँ, यू कैन ठीक है, और मैं 55 डेज अंदर लगा के आई हूँ। अगर वर्स्ट नहीं वर्स्ट सिचुएशन क्या होगा, दोबारा भेज देंगे, कितनी सजा है उसमें? 2 महीने और लगा लेंगे। कितनी सजा होती है उसकी? मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 इयर्स है। 3 इयर्स मैक्सिमम। तो जितना टाइम आपने जेल में निकाल दिया है वो भी कट होगा? वो होगा उसमें, ओके, इंक्लूडेड दैट। वो तो होने ही नहीं लगा ना। कन्विक्शन तो तब होती है अगर आप वो मतलब मेन पूरा करते हो जो कंपोनेंट है क्राइम के, तो वो कंपोनेंट तो डेलिब्रेशन नहीं है। तो इतना लंबा क्यों खींच रहा है? क्योंकि ट्रायल स्टे हो रखे मेरी तरफ से। ओके। मेरी तरफ से हाई कोर्ट में क्वेश्चनिंग फाइल है। हाई कोर्ट के पास इतनी पेंडेंसी है केसेस की, और 1 साल से तो मेरा सिर्फ एक वो स्टेज पे चल रहा है आर्गुमेंट्स पे। ये दूसरे जो नॉर्मल क्लाइंट होते हैं वो बोलते हैं हमारा केस ही चल रहा है, आप तरीके ले रहे हो। अब मेरा भी वही केस है, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि ये अब कोर्ट के पास टाइम ही कहाँ, इतनी पेंडेंसी चल रही है, तो इसलिए लंबा चल रहा है। इट्स ओके, अब तो 5 साल होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि इसके कारण आपकी और चीजें भी सफर करेंगी? जस्ट लाइक कि आई थिंक वी वर डिस्कसिंग अबाउट यू वर प्लानिंग टू गो आउट ऑफ कंट्री फॉरेन। हाँ, मेरी फैमिली बाहर है। हाँ, नहीं तो ये नहीं होता, वो लोगों को पता ही नहीं है इस चीज के बारे में। सर, जो पासपोर्ट एक्ट है ना, देखो मेरा अभी पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है जनवरी में। तो मैंने अभी जस्ट अप्लाई किया है फॉर रीइश्यूइंग रिन्यू के लिए पासपोर्ट का। तो ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें प्रोविजंस है। जैसे कि अगर आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे देते हो कि ये पेंडेंसी है, तो आपको पासपोर्ट मिलेगा। पासपोर्ट जो आपका है दैट इज आपका फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट को किसी भी रीजन के कारण, अनलेस आप पब्लिक पीस के लिए या देश की सॉवरेनिटी के लिए खतरा हो, तो आपके पासपोर्ट को कोई भी इम्बाउंड नहीं कर सकता, और आपके पासपोर्ट रीइश्यू करने से रोक नहीं सकता। ठीक है, कोई भी आपका पासपोर्ट नहीं रोक सकता, कोई भी अथॉरिटी, वो पासपोर्ट अथॉरिटी हो। इसके लिए ना मतलब अगर रोकेंगे भी इंक्वायरी के बेसिस पे, देन आई कैन गो टू हाई कोर्ट। आई नो दी लॉस। मैं जाऊंगी, मैं रिट फाइल कर दूंगी। तो यही वे होता है कि अगर आपका कोई केस पेंडिंग है, वैसे तो वो आपको केस नहीं रोक सकते, आप सिर्फ ट्रूली आप मेंशन करो, वहां पे होता है कि आपका कोई केस पेंडिंग है, वो हम पे डिटेल दे दो। तो जैसे मेरा है कि मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, मैंने साथ में जजमेंट्स लगा दी, बेल की भी लगा दी और ट्रायल स्टे की भी लगा दी कि अब ये केस चल रहा है कोर्ट में। ठीक है, तो मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी। अब वो मेरा रोक नहीं सकते। अगर मेरा रोकेंगे, मैं अपील फाइल करूंगी, उसी के अंदर अपील है कि यह मेरा बनता है, आप कैसे रोक सकते हो। अगर फिर भी रोकेंगे, आई हैव द ऑप्शन टू गो टू हाई कोर्ट, आई कैन फाइल रिट पिटीशन। और उसमें एक जजमेंट है अभी, मोहनलाल की जजमेंट है, उसमें बहुत सारे केसेस डिसाइड किए थे, उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया था इवन इफ केस इज पेंडिंग, तो वो तब भी आपको पासपोर्ट देना पड़ेगा। और जैसे मेरे केस है, तो मेरी फैमिली सारी अब्रॉड रहती है, ऑब्वियस मैंने अपनी फैमिली को मिलना है, तो वो 10 लोग तो इंडिया आने से रहे, ऑब्वियस है।
तो मैंने तो उनको मिलना ही है, तो मुझे रोक थोड़ी ना सकते कि आप, और मेरे ऊपर कोर्ट ने भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखी कि आई कैन नॉट गो आउटसाइड द कंट्री या कुछ भी ऐसा है। और सिर्फ वही नहीं, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं एक एडवोकेट हूँ, तो हो सकता है कि मेरा दिल कहीं घूमने का, हो सकता है मैंने कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी हो, तो मुझे रोक थोड़ी ना सकते। इसके लिए सबसे पहले मेनका गांधी का आया था, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वो लैंडमार्क जजमेंट है। तो पासपोर्ट कोई नहीं रोक सकता आपका। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि आपका पासपोर्ट विदहोल्ड कर लिया जाएगा। आप कोर्ट की परमिशन से बाहर भी जा सकते हो, आपको पासपोर्ट भी आपका मिलेगा। तो उसमें जब मान लो बाहर जाना है तो उसमें हर बारी बताना पड़ेगा पुलिस स्टेशन में कि मैं वो तो बताना जरूरी है ना, पुलिस स्टेशन नहीं, कोर्ट को तो बताना पड़ेगा ना, परमिशन तो लेनी पड़ेगी। खैर मेरे इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन कोर्ट की परमिशन तो रिक्वायर्ड है ना, बिकॉज आप अंडर ट्रायल हो, आपके ऊपर एक केस चल रहा है, तो आपको कोर्ट को तो बताना पड़ेगा, परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना कि मुझे परमिशन दी जाए जाने के लिए। ओके, सो मैम दैट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, वो तो एक एप्लीकेशन से हो जाता है। हाँ, ऑर्डिनरी पर्सन के लिए ये डिफिकल्ट रहेगा कि क्या बार एप्लीकेशन ये वो, लेकिन अगर आप अब्रॉड जाने का खर्चा अफोर्ड कर सकते हो तो एक एप्लीकेशन लगाने में भी आपको क्या दिक्कत है? हाँ, ऑब्वियस है। So ma'am, at the end, as we are moving towards the end of this podcast, yes. So I would like to understand one thing कि जब कभी ऐसा इंसिडेंट होता है, what should be the process they should follow and how people can contact you if they are in need, obviously if they are genuine people. हाँ सर, लाइक रिपोर्टिंग तो मैंने आपको पहले ही बता दी है। देखो चाइल्ड केस में तो anyone can contact me anytime 24/7. Even अगर मैं सो भी रही हूँ, बच्चे का केस है तब भी मैं आंसर करूंगी। ठीक है। हाँ, बाकी केसों को नहीं करूंगी, बाकियों में मेरा अपना है कि मैं चूज करूंगी कि मैंने लेना है केस का नहीं लेना एज अ प्रोफेशनल एडवोकेट। तो चाइल्ड के केस में 24/7 पेश हूँ, और इसमें प्रोसीजर मैंने पहले ही बता दिया कि अगर इंसिडेंट होता है इमीडिएटली रिपोर्ट द पुलिस। अगर पुलिस रजिस्टर नहीं कर रही केस तो चाइल्ड कमीशन के पास जाओ, CWC के पास जाओ। सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट में CWC होती है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, उसके पास जाओ। इवन आप जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है उसके पास भी जा सकते हो, वो भी आगे CW को भेज के FIR रजिस्टर करवा सकते हैं। वहां पे भी नहीं होती तो आप चाइल्ड कमीशन के पास आओ, वो तो आपकी सॉल्व करेगा ही करेगा। ठीक है। अगर आपको लगता है कि कहीं से भी नहीं हो रहा, जो आपको समझ ही नहीं आ रही, देन दे कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरा नंबर है 9815163031। ये मेरा पब्लिक डोमेन पे नंबर है, तो ये एक लड़का या लड़की कोई भी होता है वो उठाता है, वो बता देता है। अगर जेन्युइन केस होता है मेरे पास आ जाएगा, तो मुझे इसी नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट पे मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। जो जेन्युइन केस होगा उसमें हम डेफिनेटली हेल्प करेंगे। अगर जेन्युइन नहीं होगा तो देख के पता चल जाएगा कि ये जेन्युइन नहीं है, तो आप पता चल जाता है, इतनी डीलिंग हो गई है तो पता चल जाता है। तो रजिस्टर कराओ सबसे पहले, और मेडिकल करो, ट्रीटमेंट कराओ बच्चे का, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग। ये प्रोसीजर रहता है जो मैंने अभी पहले आपको बताया। अगर मुझे कांटेक्ट करना उसके लिए मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन चाइल्ड सेक्स अब्यूज के बिना बाकी सबके को मैं एज अ प्रोफेशनल एडवोकेट डील करती हूँ। ठीक है। फ्री लीगल एड सिर्फ चाइल्ड सेक्स अब्यूज में प्रोवाइड कराई जाती है और किसी में नहीं करवाई जाती। हाँ, बहुत ही जेन्युइन केस हो, बिलो पॉवर्टी लाइन हो, उनको DLS से भी अच्छी तरह हेल्प नहीं मिली, तो केस कंसीडर करके मुझे लगता है सही है। तो क्योंकि आजकल फेक बहुत आ जाते हैं, यस मैम, तो वो देखना पड़ता है, स्क्रूटनाइज करके देन वी हैंडल दैट केस। ओके, दैट इज रियली गुड जी। मैम, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे जी, बिफोर वी से बाय फॉर टुडे जी। सो what do you think कि what is the your वो कहते हैं ना कि मुकाम, किस मुकाम के लिए आप एक्सपेक्ट करते हो कि लाइफ के एंड में, मतलब when you plan for retirement, so क्या सोचते हो कि that should be the stage? जो देखो ना, तो वकालत के प्रोफेशन में कभी कोई रिटायरमेंट एज होती है, ना ही जो मैं काम कर रही हूँ इसकी कोई रिटायरमेंट एज है। तो मुझे तो नहीं लगता मैं जब तक जी रही हूँ मैं कभी रिटायर होंगी। और मुकाम की बात है कि जब मैं, देखो मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं बिल्कुल ही खत्म कर दूं, ये कलयुग है, कलयुग में तो ये पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे तो अभी इंसान का जो नफरत, गलत हरकतें, ये तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार विद टाइम लोगों पे हावी होता जाएगा। राइट। तो लेकिन जितने भी बच्चों को मैं प्रोटेक्ट कर सकती हूँ तो वो कर पाऊं, वही मेरा मुकाम है। जितना भी मैं अपने आखिरी सांस तक किसी भी बच्चे को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ वही मेरा मुकाम है। ना तो मुझे ये है कि मेरा बहुत बड़ा घर हो,
ना मुझे कोई बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, ना मुझे कोई, हाँ अपने लिए मुझे दुनिया घूमने का शौक है, मैं घूमती हूँ, मैं ट्रिप करती हूँ। अभी पहले इंडिया घूमना है पूरा, थोड़ा सा रह गया, फिर बाकी भी घूमेंगे आसपास के कंट्री। मतलब मेरा वो क्रेज नहीं है कि मैंने पहले यूरोप देखना है, पहले मतलब कहीं और। तो मेरी अभी जो विश लिस्ट है छोटी छोटी है, श्रीलंका देखना है, तिब्बत देखना है, भूटान देखना है, नेपाल देखना है, छोटे छोटे। फिर ये हमारे आसपास के जो आइलैंड्स है वो देखने हैं, अंडमान निकोबार प्लान में है। मतलब ये छोटे छोटे प्लान है कि पहले हमारे, पता है आपको, साउथ इंडिया में इतनी ब्यूटी है, ये साउथ एशिया में, हमारा साउथ एशिया मतलब इज द बेस्ट प्लेस, जिसमें आपको हर चीज मिल जाएगी। आपको बहुत बर्फ भी मिल जाएगी, आपको बहुत अच्छे सी एंड और बीचेस भी मिल जाएंगी। ठीक है, बहुत ही अच्छे आपको वो कहते हो कि जो घास वाले एरिया होते हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन, वो भी मिल जाएगा। सब कुछ आपको ये सब, ये हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है साउथ एशिया, यहाँ पे मिल जाएगा। तो पहले मेरा टारगेट है, मैंने पूरा साउथ एशिया घूमना है, ये अपने लिए जो टारगेट है। ठीक है, बाकी मुझे है कि कभी ना कभी टाइम लगेगा। मैंने अभी दोबारा पढ़ाई शुरू की है, ह्यूमन राइट्स का डिप्लोमा कर लिया, तो मेरा दिल है कि कभी पीएचडी भी करूं। तो ये मेरा अपना पढ़ाई का मुकाम है। और जिंदगी का मुकाम मेरा कोई नहीं है कि मैंने कोई सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन लेना, ये कोई मेरा मुकाम नहीं है। मैंने कोई जज बनना, ये मेरा कोई मुकाम नहीं है। ठीक है, बाकी जिंदगी ने कहाँ पे ले जाना मुझे नहीं पता। अभी यहाँ से जाते अगला श्वास आना है नहीं आना ये भी नहीं पता। सो जितनी है अच्छी जीऊं, जी भर के जीऊं और किसी काम आ पाऊं, बस यही मुराद है, यही मेरा मुकाम है। थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू।